नमस्ते, आप सबका इस मासिक मिलन में स्वागत है। मैं वेद गुलाटी जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति कि हमारा जो मन है, अंतःकरण, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मनस, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 कारण बताए गए हैं। तो इसके बारे में बहुत यजुर्वेद में भी एक उपमा आती है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 6ठा मंत्र है, सुषावते अश्वानिम यन मनुष्यान्य नियत। जो एक रथ है, ये जो मनुष्यों को इधर उधर ले जाता है जीवन काल में, और यही रथ मुझे ईश्वर के पास भी ले जा सकता है। तो ये उपमा कठ उपनिषद में भी आई है और फिर गीता में भी आई है। तो इस उपमा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए वेद जी। नमस्ते आचार्य जी, आप सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते। आप सब हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. ईच वन ऑफ you has contributed to my learning so much through your posts, comments and everything. I'm really grateful to you on this auspicious Teachers Day. Thank you. I begin with a prayer of Gayatri Jap. प्राणदाता दुख हरता सुख स्वरूपेश्वर पिता हो ग्रहण के योग्य तुम ही ज्ञान रूपेश्वर पिता। ध्यान करते हैं तुम्हारा हम जगत उत्पादक पिता। बुद्धियों को हे पिता प्रेरित हमारी कीजिए शुद्ध ज्ञान अमृत पिला अज्ञान सब हर लीजिए। बहुत अच्छा। I will narrate to you an experience of a flash while practicing Upasana for the first time. Before closing my eyes, I always get to see the picture on the front wall of the Rath with horses and Krishnji in the driver's seat while Arjuna is behind. As I open my eyes after about 10 minutes of Dhyan Upasana, I happen to see a round golden light flashing in place of Arjuna's head for quite some time. I'm not sure if this was an imagination. I was dazed and kept watching, wondering what was going on. I continued to sit on the same chair, and at once the Sankhya diagram, which Acharya ji keeps showing us in the Upasana classes, got connected with this chariot. So this is not the exact picture, but almost a similar picture hangs in my prayer room, where previously I used to do puja, but now I've replaced that with Upasana, and I'm enjoying my new journey. And prior to learning in Acharya ji's class, my main focus used to be on Krishnji. But I could not connect like the whole thing. And with the help of Dhyan, I have come to understand it better, that through Sankhya, that Arjuna here is more important, is the main focus. And how did I understand that? In Sankhya, we have been learning about Purusha and Prakriti as the two main things. So Purusha is the witness, which is represented by Arjuna here, and he is subjective. So that is the Purusha within each one of us. And everything else in the chariot is out of Prakriti. The Prakriti in the unmanifested form, as we have learned, is in perfect equilibrium with Sattva, Rajas, and Manas, Tamas. But then when it differentiates, all else other than Purusha is created out of Prakriti. So Prakriti, I have underlined in blue, it is the doer. It is not the witness. It is the doer, it is a creative doer, and it is objective. All objects are formed from Prakriti. And a word about Man that I'm going to compare with this analogy. Man, as we have learned from Acharya ji, is the Antakaran, which is a combination of three things. It is Buddhi, Ahankar, and it is Manas.
So let us have that broad picture. In keeping that in mind, I could understand the Rath better. So our intellect, or the buddhi, the mahat as he calls it, which is made of all the sattva guna of the Prakriti, is represented by Krishanji in the Rath. And from buddhi comes the ahankar, the storehouse. But in the picture, I was struggling to get the representation of ahankar, which Acharya ji guided me in this, that sometimes things are not implicitly, not present. You can't compare each item from the analogy with the real thing. So there is no representation of ahankar here. I'll just get back to ahankar in a bit, but we have to assume that this ahankar is present in the buddhi, here represented by Krishanji, and manas is represented by these reins. The reins represent the manas. So in the diagram we have learned ahankar is between buddhi and manas. In the picture we can assume that it is present in the buddhi as well as in the manas, because that is the central. I will explain in a little bit later. So ahankar is implicitly present in buddhi and manas in this diagram. And manas is the reins. The sense organs, the Gyanendriya are represented by the horses. And again, the motor organs are not represented in the diagram, which I was trying to look for that, but then it is also implicitly present within the body. And the sthul sharir, the gross sharir, is represented by this chariot. The entire chariot represents our Annamaya Kosh, or the gross body, what we can say. And the path that is traversed by these horses, where are they going? They are going on a path, right? And that path represents the world and the universe. Am I clear? I think I am. So all this in blue is Prakriti, Prakriti in the unmanifested form, with all the three gunas in equilibrium. When it manifests objects, these are the objects. And the main thing is the intellect, the ahankar, and the manas, which form the antakaran. As Acharya ji reiterates, ahankar is a component of the mind, the antakaran. The other two components are buddhi and manas. So these three things together, they form the antakaran. And we should not confuse between mind and manas. Mind is the bigger subject, and manas is one of the parts of that, the third part. So ahankar properly catalogues and stores past knowledge, experience, and action. So in this Rath, ahankar is present, implicitly present in buddhi. When the incoming knowledge is processed, it is implicitly present in manas when the action is performed. So just because the representation is not there, I was struggling to find the representation, but then I got to understand that it is implicitly present. Without the contents of ahankar helping, neither buddhi can discriminate nor manas can activate the motor organs. And it is interesting to note that the 11 indriyas, the 5 sense organs and the 5 motor organs and the manas, which is also an indri, they all 11 sprout from ahankar. It is the manas within that controls. I support Uber. $100 or $500? It's saying my card balance. बीना जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को. हाँ जी, आगे बढ़िए. तो manas जो है ये 10 organs को, 10 sense organs और 10 motor organs को संचालित करता है. Manas is the linkage between all the organs and ahankar. All information from ahankar is displayed to buddhi, which only displays the data. So after having known all this theory, I was really wonderstruck that this is a great analogy.
And the Vedic understanding of the mind is very well represented in this simple form. So the different awareness that I learned from this was, this is not the Atma, because Krishnji is Bhagwan, and we try to connect that. The real Purusha, the Atma, is this, which is a witness. And everything else is made out of Prakriti. All these objects are of Prakriti, and they have formed into different objects. So when we were small, our parents used to say, "Ki lagam ko pakad ke rakho." It's just like the street lights. If you don't obey the discipline of the street lights, you can wander here and there. So Acharya is also trying to teach us that, control of the mind is very important, because all these indriyas, they work outside of you. They're always running after pleasures and everything. So the need is to hold our reins tight, the manas tight, and then, because every action that we are doing lays its seeds in the ahankar. It is like a mirror, and it keeps all the impressions within itself. So the choice is ours, whether we want to squander our time and everything outside, in the outside world, or we want to realize that we are an Atma, we are the conscious being. And one more thing I wanted to say about Sankalp Vikalp that I learned very recently in this diagram. So this is our Sankhya diagram. It has been ingrained so much into my mind that everything now I'm looking through this, and it has helped me a lot to change my perspective. And so this diagram here, so naturally this is the Purusha. So equating that, this is the Arjuna, what we are talking in the Rath. This is the Buddhi, where discrimination and decision-making takes place. And this is the Ahankar, and this is the Manas. These are the sensory organs, these are the motor organs. So it was surprising to understand that though we have 5 sense organs, at a time, the relay is only of one single sensation that goes in. This this is totally new to me. I thought just like the motor action, so many actions we can do together, but all sensations do not travel together. It is one at a time. So you see here, there is a single line. So one out of these sensations that we perceive, the information, the knowledge, what we call, travels one at a time through here, and then it goes to the Buddhi via Manas and Ahankar, and there the processing, the decision making, the discrimination, everything happens at the level of Buddhi. And after it decides, then the action leading to the action of the Karmendriya starts from here, and Ahankar handles that, and via the Manas, we act. So it is like a relay loop kind of a thing, but one at a time, the entry is there, and it can the motor actions can be activated all at once, or however the thing is. So all these functions are happening here, but the experience is at the level of the Purush. It is closely associated with Buddhi, and all the impressions, the Gyan, the Bhog, and the Karma, all these impressions in lifetime, in the current life, and in the past are all stored in here. So then I slowly realized that this is the most important box, which is not represented in the Rath, but the understanding is here that without this, neither Buddhi can function, take any decision, or discriminate, or the Manas cannot activate the motor organs. So this is very important. In the other class, Acharya ji was talking of the Karmashaya. As I understand, that the seeds, they lie here. This is like a mirror which stores every action of ours.
here is the comparison again. And in my personal view, I always feel that, of course, while sitting in Upasana, we try to do Pratyahar after the pranayam and after the asana and pranayam. But in our daily life, I feel we have to control our reins and control this external, this sensory, this thing. Because suddenly in that 10 minutes of practice, we say we are doing Pratyahar by vocal recitation of Om. But if we practice Pratyahar in our daily life, I think it is a lot more easy to get from outer yoga to inner yoga. It is very important, like गांधी जी के 3 जैसे बंदर थे, कान से बुरा मत सुनो, मुंह से बुरा मत बोलो, आंखों से बुरा मत देखो, ऐसे सारी इंद्रियों को हम डे टू डे लाइफ में भी डिसिप्लिन करें, तो chances are कि we will not squander our lives in the outer world. So on daily basis, this is kind of a homework to us. I personally felt. Okay, so I had a question. If Prakriti creates only when it comes into union with Purusha, then once the objects are created from intellect down to the elements, what is the role of Purusha in governing the actions of these objects? तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ तो प्रकृति क्रिएट कर रही है पुरुष के एसोसिएशन से, लेकिन फिर पुरुष का रोल ऑब्जेक्ट्स आने के बाद क्या है इन गवर्निंग द एक्शंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. सो आचार्य जी का वर्ड टू वर्ड मैं आंसर बता रही हूँ, जिससे मुझे और आगे लिखने की प्रेरणा हुई. ईश्वर क्रिएट्स बुद्धि, अहंकार एटसेट्रा आउट ऑफ प्रकृति and employs them as instruments for the Purusha. तो ये सारे प्रकृति के फॉर्म्स ईश्वर के लिए, पुरुषा के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं. It is up to Purusha. When Purusha is tied to buddhi, then it is in bondage. Purusha is free to use these instruments to either be in bondage and continue to experience and have bhoga, or it can disunite and go towards moksha, the liberation. So it's up to us basically. Now he's giving us this power. It's not that it just happens by the grace. Of course, the grace of God is very important in everything that we do. But he has given this such a nice thing, food for thought, that it is up to us, the direction of our life. What do we choose? We have to use the instruments for our daily life. It's not that we don't need these instruments. We do need these instruments, but the question is, you want to abuse them or you want to use them? So always that disciplining of ourselves, that we want to use them for our survival, of course, but what is the long-term goal? Is definitely moksha for all of us. So now I've just written some points on discussion. So we now understand that the choice is ours in the pursuit of bhog or moksha. Bhog is the experience of joy and sorrow by Purush. Purush initially leads all the actions which are later stored in Ahankar as Karmasha. All actions are stored in Ahankar as Karmasha. Therefore, the cause of experience is the Ahankar, based on the add-on content of present or past life. In other words, the bhog, the experience, is not given by Ishwar. We sometimes say it is our destiny, this thing has happened. He is giving all the control to us. Ishwar is not giving you this bhog of sadness or happiness, for he is only the lawmaker, while Ahankar is the law executor. So much importance is given to Ahankar, which I gradually over the months realized how important Ahankar is. जैसे बोलते तराजू में जो करोगे वो भरोगे. ईश्वर कुछ नहीं कर रहा. He is not judging you. He is just giving you the result of your action. So much depends on us, is my realization, that if we really hold the reins of our life and move inside, there is so much more to. There will be no yearning beyond that point, I feel. एक मिनट वेद जी, आप एक मिनट यहीं पर रुक जाइए जरा. हाँ जी, सॉरी. एक जो आपने लिखा है ना, अभी भोग इज द
experience of joy and sorrow, Purush initially leads all the actions which are later stored in Ahankar as Karmashay. ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, तो थोड़ा मैं यहाँ क्लैरिफाई जी, कर जी, दूं आप सबके जरूर। लिए, और जो इसको बाद में सुनेंगे। जो कर्म क्लेश के वश में किए जाते हैं, क्लेश के वश में, है ना, उनका कर्माशय बनता है। अन्यथा जो कर्म किए जाते हैं, जो मोक्ष मार्ग वाले कर्म है, उनका कर्माशय नहीं बनता है ना। उनके इम्प्रेशन, उनके संस्कार बनते हैं, पर उनका कर्माशय नहीं बनता। अच्छा, देखिए, हम बोलते हैं ना निष्काम कर्म, ये जो कर्माशय है, ये सकाम कर्म का कर्माशय बनता है। जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन किए जाते हैं, उसका कर्माशय बनता है। जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, है ना, जिसको पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा, योगी नाम कर्म कैसे हैं, अशुक्ल अकृष्ण, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो ईश्वर को समर्पित है वो कर्म, है ना। जो कर्म आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, समझाने के लिए ये शब्द बोल रहा हूँ, जी, उसका कर्माशय नहीं बनता है, उसके केवल संस्कार बनते हैं, है ना। सकाम कर्म के संस्कार भी बनते हैं और कर्माशय भी बनता है। अच्छा, सकाम कर्म में फल की इच्छा है, तो सकाम कर्म का, देखिए, कर्म कुछ भी करेंगे उनका संस्कार बनेगा। संस्कार का मतलब क्या है, एक उसकी इम्प्रेशन हो गई, जिससे अगली बार वो कर्म करना आसान हो जाता है। जी, जैसे मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, तो पहले दिन अभ्यास किया, दूसरा दिन, तीसरा, तो इसके जो एक एक दिन में अभ्यास का इम्प्रेशन, संस्कार पड़ा, 2 महीने बाद अब साइकिल चलाना मेरे लिए आसान हो गया है, क्योंकि अहंकार में वो संस्कार मजबूत हो गए। जी, आप समझ गए। तो जो भी कर्म किया जाता है कर्मेंद्रियों से, उसका संस्कार पड़ता है। ये तो पहली बात हुई। अब कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। जी, सकाम है कि मुझे उसकी एक फल चाहिए, अंत में उसकी एक परिणति चाहिए, उस इच्छा से मैं वो कर्म कर रहा हूं। जैसे ऑफिस में हम काम करते हैं, महीने के अंत में हमें पे चेक चाहिए, एक चेक आना चाहिए, है ना, जी, जिससे हम परिवार को पालन पोषण करते हैं, वो सकाम कर्म। तो सकाम कर्म का एक हमें फल मिलता है। कोई चोरी करके लाता है, कमाता है परिवार के लिए, कोई ऑफिस में, दुकान में कहीं काम करके कमाता है, सकाम कर्म है ये। सकाम कर्म भी धर्मानुसार भी हो सकते हैं, अधर्म के भी हो सकते हैं, है ना, अच्छे भी बुरे भी। अब एक कर्म है, जैसे आप वीएसएस ग्लोबल से वॉलंटियर हैं, इसमें आपको कुछ मिलना नहीं है, ये आपका निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का कर्माशय नहीं बनता है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलना है। वो आपने क्या कहा कि ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं ईश्वर के लिए ये कर्म करती हूँ, है ना। तो जो कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं, वो निष्काम कर्म है। उनका सुख दुख का कोई फल नहीं मिलता, है ना। सुख दुख भोग है सकाम कर्म के फल की अंतिम परिणति, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, पर ऑल एक्शंस आपने लिख दिए ना, तो इसलिए मुझे ये आपको बताना पड़ा। जी, जी, पुरुष लीड्स ऑल द एक्शंस व्हिच आर लेटर स्टोर्ड इन अहंकार एज कर्माशय। तो इसमें आएगा पुरुष लीड्स ऑल इंटरेस्टेड एक्शन या अटैच्ड एक्शन, एक्शन डन विद अटैचमेंट, है ना, या इंटरेस्टेड एक्शन। सकाम का इंग्लिश शब्द मुझे भी नहीं मालूम है, तो ये आपको सोचना होगा क्या, या आप हिंदी का लिख दीजिए सकाम एक्शंस। मैंने आपको रोक ही दिया है, तो एक बात और जो जी, बीना जी, जी पूछ रही थी, ये हम सबको बहुत समझना होगा, और आप में से सब मेरे ख्याल से समझ भी गए हैं। तो ये इतना कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं कि लगभग पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। वो क्या है,
वो शब्द है मन। अब मन है, हमने जो यजुर्वेद के मंत्र देखे, तन्मे मनः शिव, जो आपने ये पिक्चर रखी है हमारे पास कृष्ण अर्जुन और रथ वाली, ये रथ का जो मैंने यजुर्वेद का मंत्र बताया, उस मंत्र में भी अंत में क्या है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वह मेरा मन शिव शुभ संकल्प वाला बने, ये प्रार्थना की गई। फिर मन क्या क्या करता है ये बताया गया। अब यजुर्वेद के इस मंत्र में मन शब्द का अर्थ है टोटल माइंड, एग्रीगेट माइंड, है ना। आपने अच्छी तरह से सांख्य डायग्राम से भी समझाया है कि माइंड के 3 कंपोनेंट है ना, और 3 कंपोनेंट का कपिल ने शब्द जो प्रयोग किए हैं, बुद्धि, अहंकार और मनस। अब ये मनस और मन एक जैसा लगता है, इसलिए लोगों में कंफ्यूजन होता है ना। तो हमें बार बार बताना चाहिए ठीक से कि मन शब्द हम बोलेंगे पूरे एग्रीगेट के लिए, टोटल माइंड विच हैज 3 कंपोनेंट्स, बुद्धि, अहंकार और मनस। अब जैसे मैं सांख्य का हिंदी भाष्य लिख रहा हूँ, तो मैं मन लिखता हूँ टोटल माइंड के लिए और मनस लिखता हूँ उस कंपोनेंट के लिए। तो बुद्धि के लिए आपने जो डायग्राम इंग्लिश वाला दिखाया, उसमें बुद्धि के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं इंटेलेक्ट, अहंकार के लिए मैं लिखता हूँ स्टोर हाउस, दूसरे लोग ज्यादातर ईगो लिखे हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आज आपने अच्छा समझाया अहंकार का वास्तव में क्या रोल है ना। फिर मनस के लिए मैंने जैसे इस डायग्राम में लिखा लिंकेज, क्योंकि वही अहंकार को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जोड़ता है। तो मनस जो है वो 5 सेंसरी ऑर्गन, 5 मोटर ऑर्गन का सुपरवाइजर है, मैनेजर है। वो उसने जिससे डाटा लिया वो डाटा अंदर अहंकार में जाएगा, है ना। तो वो सुपरवाइजर जैसा है। अब मनस और मन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जिस लेखक की आप पुस्तक पढ़ेंगे उसको भी ये बात मालूम है या नहीं मालूम, है ना। तो वो मनस को मन बोल रहा है या क्या है। अब मनस असल में संस्कृत में मनस ही मन है ना, मनस ही मन है। लेकिन हिंदी में ये मैंने एक शब्दावली गढ़ ली है, जब मैं मन बोलूंगा तो बुद्धि, अहंकार, मनस तीनों का समावेश है, और मनस बोलूंगे तो खाली हो। अब ये देखिए वेद में भी मन आया है, तो बोलचाल में हम जब बोलते हैं ना, मेरे मन ने ऐसा सोचा, है ना, इसका मतलब है कि पूरा एग्रीगेट बुद्धि ने सोचा, है ना। और जब इतनी बात हो गई है तो आप सब जानते ही हैं, चित्त का भी, चित्त चौथा कंपोनेंट नहीं है ना। मन के 3 ही कंपोनेंट हैं। चित्त बुद्धि का एक नाम है, बुद्धि की एक विशेष अवस्था जब वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाती, जब वो शांत बैठी है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, तब उसे चित्त कहते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा मैंने आपको रोका, अब आप आगे बहुत बढ़िए। अच्छा लगा मुझे। तो डॉक्टर आचार्य जी, जो आप बोल रहे हैं मन, तो हम उसको हिंदी में इंटेलेक्ट बोलेंगे ना, या माइंड बोलेंगे? मन को सॉरी, मन इंग्लिश बोलेंगे में। हिंदी में, पर नहीं जब ना, आप सॉरी, बोलचाल में इंग्लिश में। मन बोल रही हैं तो या आपके भी ध्यान में होना चाहिए, मन ये है ओवरऑल एग्रीगेट माइंड, है ना, और माइंड। सुनने वाला भी यही अर्थ लगाया है ना। ओके। तो इंग्लिश में हम उसे माइंड बोल देते हैं। इंग्लिश में अब इंटेलेक्ट शब्द है, अब अहंकार के लिए क्या शब्द है, मेमोरी बोलते हैं, लेकिन मेमोरी में वो भाव नहीं है जो हम अहंकार में, आपने भी कहा ना, इस जन्म के और पिछले जन्मों की, है ना। तो या मेमोरी शब्द में पिछले जन्म की मेमोरी तो कोई नहीं बोलता ना। तो मेमोरी जब वो बोलता है, और मेमोरी में भोग और कर्म के संस्कार भी नहीं, प्राय मेमोरी होती है नॉलेज बेस्ड, है ना। पर हम क्या बोल रहे हैं, स्टोर हाउस में क्या है, पास्ट नॉलेज भी है, भोग भी है, और एक्शन के भी इम्प्रेशन है, तो चीजों के संस्कार। मेमोरी शब्द में उतना व्यापक भाव नहीं आता। मेमोरी शब्द में मूल चाल में नॉलेज के जो कॉपी है, नॉलेज के जो इम्प्रेशन है वही आते
है ना। भोग के और कर्म के तो बहुत ही कम आएंगे। कोई नहीं कहेगा मेरी मेमोरी में मेरी ड्राइविंग स्किल है ना। मेमोरी में पहले वो बोलते हैं मुझे उसका नाम याद है, मुझे वो किताब में ये पढ़ा था ये याद है। अब मेरी ड्राइविंग स्किल अहंकार में स्टोर्ड है, इसको इसके लिए मेमोरी शब्द लोग कम बोलेंगे, है ना। या मेरी माँ वो चीज मिठाई बनाती थी, उसका स्वाद मेरी मेमोरी में है, इतना तो थोड़ा बोल देते हैं लोग कि पिछला भोग भी याद है मुझे, है ना। मेरी सुबह की चाय का स्वाद ये मेरी मेमोरी में। पर कर्म का इम्प्रेशन, जैसे मैंने ड्राइविंग स्किल वाली बात की, इसका कम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। पर हम जो अपने परिवार में हैं, हमें अहंकार शब्द में सभी संस्कार आ गए। संस्कार माने इम्प्रेशन, इसमें अच्छे भी संस्कार हैं, द्वेष वाले भी संस्कार, क्लेश वाले भी संस्कार, दोनों तरह के संस्कार। तो पहले हम उपासना क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। पहले तो बुद्धि शुद्ध हो जाने से उसको अधर्म में रुचि नहीं हो, तो सकाम कर्म कहेंगे लेकिन अधर्म वाले नहीं कहेंगे। देखिए सकाम कर्म भी दो हो गए ना, धर्म और अधर्म। तो बुद्धि अपवित्र है तो उस व्यक्ति को अधर्म में भी रुचि हो जाती है ना। तो पहले हम बुद्धि को शुद्ध करना चाहते हैं तो ध्यान से वो लाभ होता है। पहले फर्स्ट ऑर्डर बेनिफिट ये है कि हमें अधर्म तो हट गया, लेकिन सकाम कर्म धर्मानुसार अभी भी चल रहे हैं। अब हम ये जो क्लेश अंदर पड़े हैं अहंकार में, बुद्धि पवित्र हो गई है, अब अंदर जो अहंकार में मैल पड़ा हुआ अनवांटेड संस्कार है, उसको क्लेश बोलते हैं, उसको हम जलाना चाहते हैं, है ना। तो ध्यान की हायर स्टेज में वो जलते जाएंगे, वो जलते जाएंगे। जैसे जैसे क्लेश कम होगा, अब आप वैसे कर्म नहीं कहेंगे जो कर्माशय बनाते हैं, कम कहेंगे। तो देखिए कर्म की दिशा में आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बुद्धि पवित्र हो गई तो आपके अधर्म बंद हो गए। अब क्लेश कम हो गए हैं तो अब आपको सकाम कर्म में रुचि नहीं है, अब आप निष्काम कर्म वाले हो गए, तो आप ऊपर की श्रेणी में जाते जाएंगे। अब आपका ध्यान आगे बढ़ रहा है तो दूसरे संस्कार भी नष्ट होंगे और एक दिन ऐसा है कि बुद्धि और अहंकार भी मूल प्रकृति में चले जाएंगे, है ना। उसको मुक्ति बोलते हैं। तो ये स्टेजेस हैं। तो इसका कर्म की फिलॉसफी से या योग दर्शन में जो क्लेश के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, ये सब कोरिलेशन आप धीरे धीरे समझ जाएं तो फिर आपको कोरिलेट करना आसान हो जाएगा। और कोई दूसरा कोई क्या बोल रहा है, लिख रहा है, ज्यादातर आप देखेंगे लोगों ने गलत लिखा है, गलत ढंग से बोलते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ गलत बोल रहा है। लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी कैसे सुधार ली जाए तो इसकी बात सही हो जाए। वो पूरी बात गलत नहीं बोल रहा है ना। वो मन से हो सकता है मनस बोल रहे हो मन को, है ना, या मन को मनस समझ रहा हो। ये थोड़ा जो है बुद्धि और चित्त का अंतर, चित्त में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि चित्त से एक और शब्द है मिलता जुलता, वो है चित्त। चित्त और चित्त ये दो शब्द है ना, आप जानते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर है, उसमें क्या है, सत चित आनंद। ये चित्त कैसे लिखेंगे, ची और त के नीचे हलंत होगा चित्त। और हम जो बोल रहे हैं बुद्धि चित्त बन जाती है, वो है ची और त के बाद एक और त, चित्त। तो चित्त है हमारे माइंड का एक कंपोनेंट, बुद्धि एक विशेष अवस्था। और ये चित्त क्या है, चित्त कोई चीज नहीं है, चित्त इज एन एट्रीब्यूट, ये एडजेक्टिव है। ये जो हमारा आत्मा है इसकी शक्ति है चित्त, यानी चैतन्य इसकी शक्ति है ना। ये जो चेतना है हमारी वो आत्मा की शक्ति है, ये कोई चीज नहीं है। चित्त तो एक वस्तु है, बुद्धि एक वस्तु है जो काम करती है ना। तो बुद्धि एक विशेष अवस्था में चित्त बन गया। चित्त क्या है, चित्त है हमारी एक चिति शक्ति, चैतन्य वाली शक्ति है ना। तो चित्त और चित्त में बहुत कंफ्यूजन है। बड़े बड़े विद्वान चित्त को कॉन्शियसनेस लिख देते हैं, बड़े बड़े विद्वान है ये, चित्त को चित्त समझ कर कॉन्शियसनेस लिख देते हैं।
वो ये नहीं जानते चित्त बुद्धि का ही नाम है एक विशेष अवस्था में, विच इज नॉट एन एडजेक्टिव, विच इज ए नाउन, इट इज ए थिंग, एक वस्तु है ये। चित्त एक वस्तु है, चित्त एक गुण है, एक हमारा गुण क्या है, इसको स्वरूप शक्ति बोलते हैं। अभी डॉक्टर मदन मोहन जी का प्रश्न लूंगा तो उसमें ये बातें थोड़ी आएंगी, है ना। आइए अब आगे चलते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत अच्छा था वेद जी, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस कंपैरिजन। तो आचार्य जी से और आप लोगों से सीख के मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लाइक आई एम ए बिगिनर, बट मुझे अच्छा लग रहा है। मत बोलिए, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा तो मैं ही हूँ, मेरे को लोअर किंडरगार्टन में बैठा हूँ। नहीं, सभी ऐसे हैं। तो मैंने ये चेंज कर दिया कि पुरुष इनिशियली लीड्स ऑल द सकाम एक्शंस विद अटैचमेंट which are later stored in ahankar as karmashan. Therefore, the cause of experience is the ahankar based on the add-on content of present or past life. In other words, the bhog experience is not given by Ishwar, for he is only the lawmaker while ahankar is the law executor. As a jiva, Purush is in bondage with buddhi. We can easily become the slave of buddhi by abusing it or being led by it, thus making it our swarm and thus experiencing joy and sorrow. On the contrary, we can dictate buddhi through our essential willpower and keep it as a slave, an instrument, thus using it properly. This Purusharth will relieve Purush from bondage with buddhi and liberate us, leading to moksha. So ye mane I am the boss. That is, Purush is the boss, not the buddhi. So no, my question is there, Vedji, how does, like, I wanted to ask Acharya ji, this bothers me a lot. The moment Purush comes with the prakriti के साथ में टच में आता है तो सब शुरू हो जाता है, तो उस टाइम ऐसा क्या करना चाहिए कि पुरुष प्रकृति के साथ रहे भी पर उसके साथ अटैच ना हो? उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जैसे घोड़ों से शुरू कर रहा है ना, प्रत्याहार से शुरू करना है। हम जा रहे हैं हमेशा लाइक प्रैक्टिकल, उसमें दिन भर में देखिए हमें ये खाना है, हमें ये सुनना है, हमें ये प्लेजर्स के अंदर ही हम सब घूम रहे हैं इस चक्र में। बट ये अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जब इमीडिएटली जब हम आते हैं इस दुनिया में, जैसे जो कांटेक्ट होता है पुरुष और प्रकृति का, तो प्रकृति वो ज्यादा बुद्धि जो वो बॉस बन जाती है, पुरुष जो जबकि मेन पुरुष है, राइट। तो ये सब बात ऐसे फॉरएवर संस्कारों में बनी रहे, हम भूले ही ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं? एटलीस्ट सिखा सकते। आई थिंक ये जो विल पावर आचार्य जी ने वर्ड यूज किया, मैं ये सोच रही थी विल पावर किसका कह रहे हैं, तो आई थिंक ये पुरुष के लिए है कि वो यील्ड मत हो। जैसे रियल लाइफ में एक पुरुष और एक पत्नी होते हैं, पुरुष इज लाइक आफ्टर शादी बोलते हैं ना, मदर्स बोलते हैं बेटा बदल गया, बदला नहीं, बट पत्नी की उसमें आके कॉन्स्टेंटली दुनिया उसके थ्रू ही देखता है, तो कभी कभी अपना वो छोड़ देता है। तो उसी तरह अगर हम पुरुष को वैसे ही समझें कि वो रोशनी है, वो असली चीज है, तो हम उससे कनेक्टेड ऐसे गलत नहीं सोचेंगे, हम उसका यूज करेंगे प्रकृति का, बट एब्यूज नहीं करेंगे। प्रकृति भी जरूरी है, लेकिन उसका एब्यूज और यूज के अंदर जो फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम सिर्फ ऐसे सोचें दिन में कि हमने आज क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, तो इसी में तो पूरी जिंदगी चले जाएगी, राइट। पर हम जब रियलाइज करेंगे कि हम एक आत्मा है, हमारा कोई बिगर गोल है लाइफ में, हम कुछ जैसे हमारे फादर बोलते थे अपने बच्चों का तो जानवर भी करते हैं, करेक्ट, वही हम कर रहे हैं, राइट। अपने बच्चों के अंदर ही इतने मस्त है कि पूरी दुनिया जिंदगी निकल जाती है, पर कभी रुक के सोचो कि किसी और का थोड़ा भी भला करो तो कितना अच्छा महसूस होता है। ये तो ड्यूटी हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हटके तो ये रियलाइजेशन मैं समझती हूँ पुरुष के साथ ही होता है कि नहीं वेद जी, अगर हम खाली बुद्धि को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें और पुरुष को जो रियल चीज है वो तो रियल है ना, वो तो फॉरएवर है, तो ऐसे यूज करें, ये हो नहीं पा रहा है ना। मतलब हमको पता ही नहीं रहा उस टाइम जब हम पैदा होते हैं। तो वही रुक के मतलब यही रियलाइज करना है, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम बड़े बिगर हायर पर्पस के लिए इस दुनिया में, नहीं तो खाना पीना तो जानवर भी कर रहे हैं, तो ये वो तो है कर रहे हैं, लेकिन हम उससे मतलब उनके अंदर भी वो है पुरुष, लेकिन हम अपने इंटेलेक्ट के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। जानवर के पास भी है पुरुष, पर वो समझ नहीं सकता बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्शियसनेस।
तो हमारी कॉन्शियसनेस सब कुछ इतना अच्छा दिया हुआ है, पर एक पर्सपेक्टिव बदलने पर आई थिंक हम उसके टुवर्ड्स टर्न हो सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है जिंदगी में। जैसे Right. आचार्य जी ने, आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी इस चीज के लिए लगा दी, तो आप सोचो उन्हें क्या मिल रहा है। खुशी मिल रही है कि सब सीख रहे हैं, पर उन्हें अपना पर्सनल कुछ नहीं है। जैसे उन्हें तो हमारे पता नहीं, पिताजी, हमें बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे पिताजी मेरे आयुर्वेदिक फिजिशियन थे, तो हंड्रेड्स की लाइन लगी रहती थी हॉस्पिटल, चार मीनार के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डायरेक्टर थे। वहां जाने से पहले घर में प्रैक्टिस करते थे सुबह 8 से 10। तो हम ऐसे, प्रकाश मेरे भाई वो भी डॉक्टर बन रहे थे, तो बोलते हमारे को तो ऐसे किसी ने नहीं बोला कि फीस नहीं लेनी चाहिए, पिताजी आप इतना हार्डवर्क करते हो और आप पूछते भी नहीं, मतलब। तो उनका ये था, जो जो दे सकता है वो रख जाएगा, जो नहीं दे सकता उससे पूछ के तुम उसको सॉरी करवाओ, तो उसका तो भला मैं कर सकता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द ही नेवर आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम हिज पेशेंट्स। तो ये बोलते थे जब हम अपना लॉजिक यूज करते, तो बेटा कहीं से तुम्हें प्यार मोहब्बत मिलती है, कहीं से पैसा तुम्हारे जीने के लिए आ ही जाता है, ईश्वर। पर कभी पैसे का मुंह देख के तुम डिसीजंस मत लेना, पैसे तुम्हारे कदम चूमे, पैसा वो चीज है। ऐसे हमें हर वक्त यही बोलते थे कि लाइफ में अब तुम बन गए ग्रेजुएट, चलो डॉक्टर बन गए तो मुझे पैसा, ऐसा नहीं सोचना। तो हमारा सोच कभी भी ईश्वर की दया से ऐसा नहीं बना। आचार्य जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने अभी हमको समझाया ना थोड़ा सा, वो मैं फेसबुक पे डाल दूं। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, सच अ सिंपल एंड डीप, लाइक आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड मच बेटर कि वेयर वी आर, व्हाट वी आर। कैन आई पुट इट? हाँ बोलिए क्या। जो आपने अभी हमको समझाया ना, आपने पूरा हमको डिटेल्स में अच्छे से समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप, इतने अच्छी तरीके से, मनस, मन, बुद्धि और पुरुष, ये सब। तो जो आपने थोड़ा सा जो बोला अभी 5-10 मिनट, 5-7 मिनट, तो कैन वी कट इट आउट एंड पुट इट इन अ फेसबुक, बिकॉज पीपल शुड नो वी आर व्हाट दे आर मिसिंग। लोगों को पता ही नहीं है, कुछ अंधकार में जिए जा रहे मजे में। अगर वो हम डाल सकते हैं फेसबुक पे या चलिए कहीं आप पे। में से कोई लिख दीजिए एक छोटा सा पैराग्राफ, फिर देखता हूँ। ओके, ओके, थैंक यू। चलिए ये अच्छा, मैं वेद लिख जी दूंगी। को बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जी, उनको बहुत धन्यवाद। मेहनत से बनाया उन्होंने, कई बहुत दिनों से अच्छी लगी तरह हुई से थी वो। आपने जो एनालॉजी करी है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप तो फिर कुछ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी कर सके हो, तो इससे मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। तो मैं अपना कर्माशय तैयार कर रही हूँ ईर्ष्या करके। मेरी ग्रैंड डॉटर अनन्या कल कह रही थी, जब वो देख रही थी, मुझे बोल रही थी, दादी डिड इट रियली हैपन टू यू? तो मुझे इतनी हंसी आई इतनी हंसी आई कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं तो मैं लिख ही नहीं पाती। कुछ ऐसे हुआ तो ही उसको शब्दों में डाला। मैंने शुरू में लिखा कि आई वाज कंफ्यूज, लाइक यू नो व्हाट इज दिस, इज जस्ट माय मियर इमेजिनेशन और इट रियली हैपेंड। तो मेरे बेटे ने बोला, मम्मी आपकी टॉक से पहले आप जाके उपासना कर लो 15 मिनट, तो अच्छा रहेगा। तो आई रियली फेल्ट कि इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, और आप सबका प्रोत्साहन इतना है। और आचार्य जी बोलते रहते हैं हम सब संकट में आ गए हैं, तो मेरा वो घबराहट कि संकट नहीं आना चाहिए किसी को भी, हम भी कुछ कुछ प्रेजेंट करें। कुछ कुछ तो हो रहा है सबकी लाइफ में, बट तो वो मुझे काफी एनकरेज हुआ कि संकट की घड़ी आ गई है, आचार्य जी ने कहा लास्ट क्लास में। तो आप नहीं, सबका ये विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं तो मुझे पिछले कुछ दिन से लग रहा था कि किसी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है तो क्या होगा। एक छोटा नहीं प्रश्न सर, दिनेश नहीं जी का आ आचार्य गया, जी, डॉक्टर सबको। मदन मोहन जी का भी प्रश्न आ गया। प्रश्न आते हैं वो भी अच्छी बात है, यानी आप लोग सोच रहे हैं, अच्छा लगता है। तो आचार्य जी, ये चालू रहेगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए, मैं भेज दिया करूंगी। मैं तो जब आप जैसे सर पढ़ाते हो उसके बाद मैं लिखती जाती हूँ, फिर सोचती हूँ, फिर मुझे लगता है कि पता नहीं कि बचकने तो नहीं होंगे, पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि आप सब लोग इतने लर्नेड पर्सन है, मेरे को इतना कुछ आता नहीं है, ऐसा इसलिए। कुछ नहीं, किसी विषय पर आप मुझे भेज सकती हैं, फिर देख लेंगे। उससे ओके। वहीं से शुरू होता है। जैसे वेद जी ने मुझे भेजा। नहीं, मेरी डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब आप पढ़ाते हैं तो जो जो मेरे को हिट होता है उस टाइम आई कीप राइटिंग, यू नो, एंड आई कीप गोइंग थ्रू इट। आफ्टर दैट नहीं, आप एक हिंदी ऐसा, इंग्लिश सब मिक्स है। नहीं डायरी में से कुछ उठाइए मत। आप अपने मन में सोचिए कि ओके, कौन सा विषय है जिसको आपने अच्छी तरह से मजबूती से ग्रहण कर लिया है, और उसको अपनी डायरी की सहायता से भले ही एक नया पैराग्राफ बना लीजिए। फिर आप मुझे देखिए, मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ, है ना। ओके, वो विषय आपको चुनना होगा।
ऐसे ही ढाइए का एक प्रश्न नहीं, मन से अंदर से आना चाहिए कि ये बात मुझे कुछ समझ में आई है अच्छी तरह से, इसको मैं किसी और को समझा सकती हूँ. You know, before you attempt to convince somebody else, you have to be convinced, is it not? yourself, yeah. तो आपके अंदर वो एक इस तरह का आत्मविश्वास आए, है ना, देखिए सारे विषय में नहीं आ सकते, किसी 1, 2, 3 विषय में जहां से भी शुरू करते हैं, उस विषय को देखिए कि इसमें आपको आत्मविश्वास है, ये मैं किसी को, अपनी बेटी को समझा सकती हूँ. तो समझाने का एक जैसे मॉक अटेम्प्ट है ना, तो अपने आप को मजबूती आ जाएगी, फिर आप इसको दूसरे के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकती हैं ना. Thank you, Acharya. Next time, जी Veena ji आप करें. जरा स्क्रीन शेयर से बाहर आ जाइए. Sorry. अब हम छोटा सा, आज समय बहुत नहीं है, तो एक छोटा सा ही कहेंगे. टाइमर लगाया हूँ मैं 10 मिनट का. अब आप सबको अच्छा अभ्यास हो गया है, तो एक बहुत सीधी सादी चीज, 10 मिनट का टाइमर भी चालू हो गया है. मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता. एक लंबा सांस बाहर फेंकिए, बहुत लंबा नहीं हो, 2, 4, 6 सेकंड का, इससे ज्यादा. अब इसका जहां अंत होता है ना, उसको आपको कंसोलिडेट करना है. अंत में जो चीज एक चित्तवृत्ति बन जाएगी, वो चित्तवृत्ति असल में ब्लैंक है ना. अब वही आपको जैसे चित्त पर स्थापित करनी, थोड़ी देर स्थापित रहेगी, बाद में दूसरा कुछ आ जाएगा आपके अहंकार से, फिर इसको यही कहिए बार बार कह के, आपको जो अनवांटेड चित्तवृत्ति आई है उसको हटाना है ना. तो यह एक सिलसिला चलता रहेगा. आपको थोड़ी देर में लगेगा कि 10, 15, 20 सेकंड तक आप ब्लैंक रहते हैं, है ना. तो ये अभी आप शुरू करें.
ये हमारा एक छोटा सा सामूहिक ध्यान का अभ्यास था। मुख्य बात है कि आपको ये विधि समझ में आ जाए और फिर आप दैनिक जीवन में इसको अपनाएं। मैं अब दिनेश जी का एक प्रश्न आया था जो मैंने अपने समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। उनका प्रश्न है, मैं आज अपने लैपटॉप पर वो नहीं दिखा पा रहा और आप सबके साथ शेयर किया गया है। मुझे मिला है ये 27 अगस्त को, तो 1-2 दिन बाद मैंने आपको ग्रुप में भी डाला होगा। देखता हूँ मैं ग्रुप में 27 अगस्त के बाद किस दिन है। नमस्ते आचार्य जी, मैं पढ़ दूं क्या? मेरे सामने है। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं तो दिखा दीजिए। आप शेयर कर सकेंगे? एक सेकंड, शेयर का तो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, मैं आज अपने लैपटॉप पर, मेरा फोन अभी बदला है ना, तो मैं इसको अभी सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आपको मुझे 27 पोस्ट बनाना पड़ेगा पहले। हाँ, कोर्स तो बनाता हूँ, बना देता हूँ। हाँ, 28 अगस्त को मैंने ग्रुप में डाला। आप सबके पास होगा, देख लीजिए। तो मैं शुरू कर देता हूँ, कोई बात। हाँ जी, हाँ जी। तो 2-3 पंक्तियां हैं, ज्यादा नहीं है। आप 28 अगस्त को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं। तो ये उन्होंने 2-4 ही पंक्तियां लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ। 2 पॉइंट बनाए हैं। एक के बाद लिखा है चित्त की वृत्तियां, और दूसरा पर है चित्त पर आने वाली वृत्तियां। इस संबंध है प्रश्न का, चित्त से तो है ही, चित्त वृत्ति से है ना। चित्त पर जो वृत्ति है वो। अब इसको व्यक्त करने के 2 ढंग हैं। पहला ढंग है चित्त की वृत्तियां, दूसरा ढंग है चित्त पर आने वाली वृत्तियां। अब उनका कहना है, मेरे विचार में दूसरा स्टेटमेंट अधिक सटीक है, क्योंकि चित्त की अपनी तो कोई वृत्ति होती नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप लोग ऐसे ऐसे सोचेंगे, यहाँ तक आएंगे तो इससे आपका अध्ययन बढ़ेगा, है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, और चित्त को समझना से ही आप समझ सकते हैं। तो देखिए, एक बात मैं बार बार कहता आया हूँ, चित्त या बुद्धि जो है उसकी अपनी कोई रिटेंशन नहीं होती। चित्त की रिटेंशन नहीं है। रिटेन कहाँ किया जा सकता है? अहंकार में। अहंकार जो डिवाइस है वह चित्त की अपेक्षा अधिक स्थूल है। देखिए, जो चीज ज्यादा सूक्ष्म है, एक चीज है बुद्धि, वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी सटल, स्थूल यानी वो ग्रॉस हो गई है थोड़ी, उसमें आकार बढ़ गया है। अहंकार डिवाइस है जिसका कुछ कंटेंट हो सकता है। अहंकार में कंटेंट है, बुद्धि में कोई कंटेंट नहीं है। बुद्धि का कंटेंट होना तो दूर, बुद्धि कुछ रिटेन नहीं करती है। ये समझना बड़ा कठिन है, और आप ध्यान से समझिए। इसीलिए इनका ये प्रश्न, इनका जो समाधान अपने आप दे रहे हैं वो गलत है, पर इन्होंने ये सोचा, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक ये पहुंचे, इनके मन में आया, हम लूज टॉक में हम बहुत सी बातें बोल जाते हैं। चित्त पर यह वृत्ति आई, चित्त की वृत्ति है। अब मैं कभी कभी बोल रहा हूँ चित्त पर आने वाली वृत्ति,
जैसे अभी ध्यान के अभ्यास में ही हमने कहा नहीं, चित्त पर कोई व्यक्ति आ जाती है। अब यदि टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बहुत सही ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो वो भी मैं कहता हूँ जब मुझे वो विषय समझाना है। तो एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे आज वेद जी ने बताया कि ज्ञानेंद्रिय क्या एक सिग्नल, नॉलेज सिग्नल आया, मनस ने पकड़ा, मनस ने उसे अहंकार को भेजा, अहंकार ने बुद्धि को भेजा। अब हम क्या बोलते हैं, इसका सही शब्द क्या है? बुद्धि उस जो ज्ञान आया, जो नॉलेज आया, बुद्धि तदाकार हो जाती है। ये सही शब्द है। इसमें सब बातें आ जाती हैं। इसमें क्या बात आई कि बुद्धि, अब ये जो चित्त है वो बुद्धि ही है ना। चित्त और बुद्धि में हमें कोई, बुद्धि एक नॉलेज डिस्प्ले कर रही है, पुरुष को उसका बोध होता है। ये उनकी रिलेशनशिप है। बुद्धि तदाकार हो गई, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। अब जैसे किसी चीज का, किसी मनुष्य को मैंने देखा, उसका चेहरा देखा, रूप में, ये चक्षु इंद्रिय, आंखों ने देखा, इसको बोलते हैं नेत्र। तो इसके जो सिग्नल, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल जा रहे हैं, ब्रेन से होकर अंदर बहुत एक छोटी जहाँ गुफा है, उस गुफा के बाहर दरवाजे पर 5 इनलेट पोर्ट्स हैं। एक में चक्षु है, एक इनलेट पोर्ट चक्षु वाला है। तो ये जो नयन या नेत्र है, ये तो आउटर ऑर्गन है। जो सिग्नल वहां चक्षु के इनलेट पोर्ट पर दस्तक देगा, नॉक करेगा, मनस उसको ले लेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, कोई चीज हुई है बाहर की दुनिया में, है ना। यही काम है उनका, बाहर की दुनिया से मुझे अलर्ट रखना, है ना। कहीं बम विस्फोट हो गया है तो आवाज आई, भागो यहाँ से, सब करना पड़ता है ना मैं दैनिक जीवन। तो अभी जो नॉलेज सिग्नल, एक नए मनुष्य का चेहरा मैंने देखा, नयन नेत्र ने देखा, लेकिन वो सिग्नल गया चक्षु वाले इनलेट पोर्ट में, उसने वहां नॉक किया, मनस ने उसको ले लिया। अब ये एक कन्वेयर बेल्ट जैसा है, पाइपलाइन है। मनस ने उसको अहंकार को दिया, अहंकार ने बुद्धि को दिया। अब बुद्धि उस जो रूप आया, रूप, चक्षु का गुण क्या है? चक्षु जो सिग्नल लेती है उसको कहते हैं रूप। आप समझ गए ना? रूप का जो नॉलेज है, रूप में एक इंडिकेटरी नॉलेज है, वो शेप एंड फॉर्म ऑफ दैट फेस, है ना। उस चेहरे का जो रूप है, अब बुद्धि वो रूप बन जाती है। बुद्धि तदाकार होने का क्या मतलब है? बुद्धि ने चक्षु इंद्रिय से जो नॉलेज सिग्नल प्राप्त किया है, बुद्धि वो रूप बन गई है। गाय को देखा, बुद्धि गाय बन जाती है। गाय का जो शेप एंड फॉर्म है, गाय, बुद्धि हो तदाकार होने का ये अर्थ है। ये आप समझ जाइए बड़ी अच्छी तरह से। हम जब भी टेक्निकलिटी में बात करते हैं तो हम कहते हैं बुद्धि तदाकार हो जाती। अभी रूप तक तो आप समझ जाएंगे, ओके, गाय को देख रहा हूं मैं, तो बुद्धि गाय का शेप एंड फॉर्म ले लिया है गाय। अब मैं चाय पी रहा हूं, चाय का स्वाद आया, अब इस गंध का वो तदाकार बन जाती है। ये हम नहीं सोच सकते। हम ऑडियो वीडियो थोड़ा सोच सकते हैं, बाकी जो गंध और रस और त्वचा का स्पर्श है, ये कैसे होता है ये हम नहीं जानते। तो यही आपको सोचना होगा। बुद्धि ने, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? उनके 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, है ना। ये 5 तरह के डाटा सिग्नल आते हैं और बुद्धि क्या हो जाती है? अब जैसे मैंने एक शब्द बोला, ओम, अब आपकी बुद्धि ओम शब्द बन गई है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है चमत्कार हमारी बुद्धि का। बुद्धि वह शब्द हो गई है और इस शब्द का बोध पुरुष को हो गया। तो ये मैंने इसलिए कहा कि बुद्धि के ऊपर व्यक्ति नहीं चढ़ी है, बुद्धि बन गई है वो। तो इन्होंने 2 ऑप्शन बताए। एक था कि इनका शब्द क्या है, चित्त की वृत्तियां
और चित्त पर आने वाली व्यक्ति, चित्त पर आने वाली व्यक्ति नहीं मानी जाएगी, वो गलत है कहने का ढंग। हम लूज टॉक में बोल देते हैं, वो बोलना नहीं चाहिए। असल में क्या हुआ है, चित्त तदाकार हो गई है, यानी ये चित्त की वृत्ति है, चित्त की, यही चित्त वृत्ति है। आप समझ गए? ये बड़े सुपर फाइन सटल पॉइंट्स हैं, ये समझना होगा। अब इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण देने से आपको शायद आसानी से समझ में आए। उदाहरण है, हम बच्चे को देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जानते हैं हमारे बचपन में एक चीज होती है जिससे बच्चे, मिट्टी ऐसी चीज है तो बच्चे उससे चीजें बना लेते हैं ना। उससे एक आदमी बनाया, घोड़ा बना लिया। आप जानते हैं ना, प्लास्टर एक ऐसा वो मिट्टी है जिसकी अपनी कोई, जो रेजिलियंट है, बड़ी इलास्टिक है। एक छोटा बच्चा भी उसको कुछ शेप देना चाहे वो ले लेती है। आप जानते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। आप समझिए, बुद्धि वो चीज है जो, जिसके ऊपर एक एक चित्र नहीं बनाया जाए। कागज के ऊपर तो हम चित्र खींचते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो स्वयं ही चित्र बन जाता है। आप समझे? इनहेरेंट क्वालिटी हो जाती है उसकी। वो मिट्टी का लौंदा जैसा है, इट पिक्स अप द शेप एंड फॉर्म व्हाट एवर यू लाइक। पर ये खाली विजुअल है, खाली ऑप्टिकल, ये रूप की दिशा में। अब पांचों डायमेंशन में हमारे लिए सोचना बहुत कठिन है कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा तो कोई नहीं है जो शब्द बन जाए, ऐसा नहीं है जो स्पर्श बन जाए, ऐसा नहीं है जो रस, टेस्ट, स्वाद वाला बन जाए। तो ये आपको सोचना होगा कि बुद्धि हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इनकमिंग नॉलेज सिग्नल, उसके ऊपर चिपकाया नहीं जाता, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, वो स्वयं ही वैसा बन जाती है। तो आचार्य जी फिर वो वापस चली जाती है ओरिजिनल फॉर्म वंस द जॉब इज वापस डन। देखिए अभी क्या होगा। अभी जैसे मैं 4 शब्द बोल रहा हूँ, 10 शब्द वाक्य बोल, तो बुद्धि तुरंत 2 शब्द बदल रही है, और तुरंत अपनी आंख ने कुछ देखा, अब बुद्धि को रूप सिग्नल दे रही है। तो बुद्धि एक एक क्षण में अपना और फॉर्म बदलती जा रही है टू कन्वे द पीसेज ऑफ नॉलेज, दे आर कमिंग ऑन ए कंटिन्यूअल बेसिस। तो अब आपने साथ में समझिए चाय पीने लगे हैं, चाय का स्वाद, अब वो स्वाद बन रही है। आचार्य जी जब हम पीछे बात कर रहे थे तो वहीं से मैंने एक प्रश्न यहाँ लिखा था कि जब हम ये कहते हैं कि बुद्धि को शुद्ध करने का, शुद्ध करते हैं, तो फिर बुद्धि को शुद्ध करने का क्या अर्थ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। ये मैंने कभी कहा भी है, फिर से ध्यान से सुनिए। अभी 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 अच्छा, क्या हाँ जी। है, एक लोग गलत समझ जाते हैं, जैसे बुद्धि एक दर्पण है, मिरर है, उसके ऊपर धूल चढ़ गई है, धूल हटा दो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ओके। बुद्धि अब जो है, देखिए अभी हम समझ गए, बुद्धि एक विचित्र सी चीज है जो एक एक क्षण में बदल रही है और हमें इनकमिंग नॉलेज हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, और इसके आगे भी जाती है। हम क्योंकि अब थिंकिंग में जाएंगे तो थिंकिंग के कहती है, इसको वह बोलते हैं, व्हाट एवर इट इज, लेट अस नॉट गो देयर। तो अभी हमें रियल टाइम जो डाटा आया उसको डिस्प्ले करने का, इसको डिस्क्रिमिनेट भी करती है, फिर वो अहंकार से डाटा लेती है, ये सब। देखिए ये सुपर फाइन स्पीड में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सत्य है। अब ये जो बुद्धि पवित्र होने की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा, हाँ जी, हाँ जी, बुद्धि हाँ, में तभी अशुद्धि आ जाती है। हाँ, हाँ, अशुद्धि आने का मतलब है वो जो कंपोनेंट हो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसी में किसी ने कुछ बालू मिला दी, समझ, हाँ, ओके। बालू मिला दी तो वो अशुद्ध हो गई है। अब उसकी एबिलिटी थोड़ी कम हो गई है जो वास्तव में होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं आई है, वो उसका अपना ही कैरेक्टर थोड़ा बदल गया। बदल गए, ओके, ठीक है। तो बुद्धि ओरिजिनली हम बोलते हैं सत्व प्रधान है, ओरिजिनली सत्व प्रधान बुद्धि लेकर हम आते हैं, पर क्लेश के वश में थोड़ा अधर्म करने लगते हैं। अधर्म करने की जब आदत बन जाती, या आदत बनने लगती, तो बुद्धि में ही वो जो गंदगी अहंकार में पड़ी थी, अब वो बुद्धि में चिपक नहीं है, बुद्धि को इन्फ्लुएंस करेगी। अब बुद्धि का अपना इनर कैरेक्टर बदल रहा, इससे ठीक है, क्या है, बुद्धि अशुद्ध हो गई।
तो ध्यान से पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात कही, ध्यान से 2 लाभ होते हैं। देखिए ध्यान में अभी वेद बहन जी ने भी कहा प्रत्याहार के बारे में, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये बड़े मोटे-मोटे सिद्धांत है ना? तो शायद किताबों में नहीं है कहीं पर। देखिए ध्यान का 2 स्टेप है, ध्यान करने की प्रक्रिया में व्हेन यू प्रैक्टिस ध्यान, इसके 2 स्टेप। पहला स्टेप है जो मैं बोलता हूँ ना, लाइव वेत्तियाँ जो आ रही हैं उनको बंद करना। तो जो मनस के जो 5 इनलेट पोर्ट्स हैं उनको बंद करना, ये है लाइव वेत्तियाँ बंद करना। ये आसान है, ये कठिन नहीं। अब क्या होता है, अहंकार से प्लेबैक वाली वेत्तियाँ उनको रोकना कठिन होता है। तो आज अभी हम अभ्यास में बैठे तो उसके रोकने का एक उपाय बताया। कोई चित्तवृत्ति आ गई है जो हमें ध्यान में बाधा दे, है ना? तो मैंने क्या कहा, एक सांस बाहर फेंको। एक सांस आपने बाहर फेंकी, वो भी चित्तवृत्ति गायब हो गई। क्योंकि चित्त ने क्या किया, देखिए ये माइंड गेम है। जब आपने सांस को बाहर फेंका, देखिए पहले क्या हुआ, एक डिस्टर्बिंग चित्तवृत्ति आ गई, वो आपके ध्यान में बाधा देने वाली है। अब आप उसको बुद्धि के स्तर पर एंटरटेन करेंगे तो अब आपका चित्त बुद्धि बन जाएगा, फिर तो आप दुनियादारी में चले गए, है ना? तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, उस चित्तवृत्ति को आप एंटरटेन मत कीजिए, यू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। पर हाँ, ये आपके ध्यान में बाधा दे रही है, क्योंकि आप चित्त को निरुद्ध अवस्था में ले जाना चाह रहे हैं, ये कुछ और सिनेमा दिखा रही है आपको, है ना? तो आप क्या कहते हैं, मुझे इसे हटाना है। इसे हटाने के लिए आपने चित्त को एक काम दे दिया। चित्त को क्या काम दिया, सांस बाहर फेंको। ये चित्त को ही आपने कहा है, ये अब आपका हो गया ना, जो वेद जी ने अंत में दिखा, आई एम द बॉस। अब आपने कहा चित्त से, यू डू ए सिंगल एक्सेलेशन, रेचक करो। अब चित्त रेचक में लग गया तो क्या हो गया, वो जो चित्तवृत्ति आई वो ऑटोमेटिक चली गई। अब क्योंकि चित्त एक समय में एक ही चीज कर सकता है। जो डिस्टर्बिंग चित्तवृत्ति आई उससे आपने पीछा छुड़ाया, और दूसरा क्या बोला, सांस बाहर फेंको। अब वो एक्शन मोड में गया, चित्त अब एक्शन मोड में गया। अभी तक नॉलेज मोड में था कि अहंकार से कुछ चित्तवृत्ति आपको दिखाया था, आपने उसे कमांड दिया, सांस बाहर फेंको। आपने सांस बाहर फेंकी, अब ये एक्शन खत्म हो गया। अब ये एक्शन जहां खत्म हुआ, अब चित्त पर क्या है, चित्त ब्लैंक है। देखिए आप उसके साथ गेम खेल रहे हैं, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं असल, है ना? यू आर ट्रेनिंग योर ओन चित्त कि मैं जब ऐसे शांत ध्यान में बैठना चाहता हूँ तो मुझे स्वप्न मत दिखाओ। और उसकी पुरानी आदत है, वो स्वप्न दिखाता है, जैसे रात की नींद में दिखाता है, दिन के समय भी दिखाने लगता है। तो आप उससे कह रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब ऐसे बार बार आप अभ्यास करेंगे, चित्त को भी पता चल जाएगा स्वामी को ये नहीं पसंद है इस समय, तो धीरे धीरे वो बंद कर देगा कुछ भी भेजना। आप समझे ना? तो ये चित्त वृत्ति का जो खेल है ये समझना बहुत आवश्यक है। तो ये जो इनका प्रश्न था बहुत अच्छा प्रश्न था कि चित्त के ऊपर वृत्ति चिपकती है, उसके ऊपर जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आता है, स्क्रीन वो पिक्चर नहीं बनाया। और चित्त क्या है, चित्त एक विचित्र सी चीज है जिसको हम दुनिया में समझाना बड़ा मुश्किल है। चित्त इसीलिए हम बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, चित्त तदाकार हो जाता है। इस एक शब्द में सब बातें आ जाती है, इसको आप सोचिए और समझिए, है ना? ये था आज के दिनेश जी का हाँ प्रश्न। तो ये आचार्य जी मंकी माइंड, आचार्य जी मेरा एक आचार्य जी हाँ ये बोल, मंकी माइंड वाली बात हो गई ना कि हमारा चित्त जो है वो मंकी माइंड है। हाँ जी, मंकी माइंड, राइट? मन की, हाँ हाँ, वो लोगों के बोलने का ढंग है, ओके, हम नहीं जाएंगे अभी। नहीं नहीं, मेरे को आचार्य समझ में आ गया, थैंक यू। यानी इस पे मंकी, एक पॉइंट देखिए ये लोगों ने उपमा दी है, हम इस उपमा को नहीं लेना चाहते, नहीं, क्योंकि हम चित्त को जिस चीज को हम सही समझ सकते हैं, हम या उपमा क्यों दें, हम क्यों उपमा दें? उपमा हम तब एग्जैक्टली, देते हैं, एनालॉजी तब देते हैं जब किसी बात को समझाने में बहुत बड़ी मुश्किल होती
है ना, जिसको ऐसे डायरेक्ट समझाना, ये मंकी कह के देने से बहुत फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मंकी के बहुत सारे अदर एस्पेक्ट है वो मुझसे चिपक जाएंगे, है ना। जैसे अभी आज वेद जी ने माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए रथ का उदाहरण, उसमें बहुत से बातें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है, थोड़ी बहुत करेस्पॉन्डेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी कई बातें समझाई जा सकती। अब रथ का जो उदाहरण है उससे हम एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझते नहीं है। राइट, मंकी का मैं उदाहरण ले आऊं तो मंकी के बहुत सारे व्यवहार हैं, मैं उसमें फंस जाऊं, है ना। तो देखिए ऋषियों ने जो उपमा दी है उतने से ही हमें काम चलाना है। मैं कभी कभी अपनी उपमा लाता हूँ, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का लाया, है ना, तो मैं बहुत सोच समझ कर लाता हूँ कि उससे चीजें कॉम्प्लेक्स ज्यादा ना हो जाए, है ना। तो ये मंकी का उदाहरण मुझे मालूम है, ये दुनिया में लोग क्या क्या बातें करते हैं, पर आपको बहुत देखिए आपका समर्पण होना चाहिए सांख्य और योग के ऋषि के प्रति। तो जो वो बात बोल रहे हैं उसको समझने का यत्न कीजिए, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं अब उसका क्या है समझ है, पहले तो उसको क्या समझ में आया ये नहीं हमें मालूम, अब वो समझ को हमें तक ट्रांसमिट किस योग्यता कितनी है नहीं मालूम, है ना। तो या ज्यादा सब बातों में मैं नहीं मना किया कि आप दूसरा कुछ पढ़िए मत सुनिए मत ऐसे, पर आपका खूंटा है सांख्य योग दर्शन वेद और उपनिषद, है ना, इससे आपको नहीं हटना है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती जाएगी। अब आते हैं हम, अ- हाँ दिनेश जी बोलिए। तो बोलिए योग दिनेश। दर्शन का दूसरा ही सूत्र है, योग दर्शन का दूसरा ही सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसमें सभी लिखने वाले ये लिखते हैं योग चित्त की वृत्तियों का रोकना है या निरोध करना है। तो इसका मतलब वहां पे जो लिखा जा रहा है चित्त की वृत्तियों, इसका मतलब वो गलत हो जाता है। नहीं वही ठीक है ना, चित्त की वृत्ति क्या है, चित्त का तदाकार होना। अब चित्त की यही चित्त वृत्ति है, व्यापार यानी उसका फंक्शन, उसकी एक्टिविटी, है ना। चित्त हमेशा कुछ बन के बताता रहता है आपको, ये चित्त की वृत्ति, यही चित्त वृत्ति है। ये आपने मुझे दो विकल्प दिए थे, चित्त पर वो वृत्ति आ रही है या चित्त की वृत्ति है, तो मैंने समझाने का यत्न किया है कि वह चित्त की वृत्ति है, यानी चित्त ही वही तदाकार बन रहा है, या चित्त के ऊपर कोई आकार नहीं चिपकाया जा रहा ना, चित्त पर वृत्ति आती है, ऐसा कहने पर लगेगा जैसे दीवार पर किसी ने पोस्टर चिपकाया है ना, जी जी। वैसा नहीं है, ये दीवार ही पोस्टर बन जाए ऐसी आप कल्पना कीजिए, है ना। तो इसलिए हमने कहा चित्त की वृत्ति। अब ये जो योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग की वो परिभाषा बोल रहे हैं कि आपने योग सिद्ध कर लिया, यानी आपने योग को पा लिया, कब पाया, जब आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया। यानी चित्त क्या कहता है, चित्त अपनी वृत्तियां दिखाता रहता है जो भी, जब चित्त की कोई भी वृत्ति नहीं है यानी चित्त शांत बैठा है कुछ भी नहीं कर रहा, तो आपका योग हो गया, यानी अब आप ईश्वर से जुड़ गए, ये उसका कहना है ना। तो इसमें कोई बाधा नहीं आई, चित्त अपने रूटीन फंक्शन से हट जाए, है ना। जैसे बच्चे को हम बोले ना खेलो ना पढ़ो कुछ नहीं, बस एक स्टूल पर बैठ जाओ, जैसे माँ एक बहुत क्रिटिकल टाइम में है, बच्चा 2 मिनट जाए शांत बैठ जाए, समझो किसी से बात करें कुछ खास बात, तो एक तरह से हम चित्त को कहना चाहें तुम एकदम शांत हो जाओ कुछ मत करो, अन्यथा वो कुछ ना कुछ एक कहता है, उसके वो जो भी कहता है उसको कहेंगे चित्त की वृत्ति। हम बोलते हैं ना छात्र वृत्ति, व्यापार वृत्ति, कोई व्यापार कर रहा वो व्यापार उसकी वृत्ति है। वृत्ति शब्द उस अर्थ में आता है व्हाट इज हिज बिजनेस, व्हाट इज हिज फंक्शन, व्हाट इज हिज ट्रेड, वो चीज क्या कहती है, रेलगाड़ी क्या कहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। तो हर चीज का एक मनुष्य, एक अध्यापक क्या कहता है, उसकी अध्यापन वृत्ति है, वो पढ़ाता है कहीं। तो वृत्ति शब्द का जनरल अर्थ है व्हाट इज इट्स टिपिकल फंक्शन, व्हाट इट डज। तो चित्त वृत्ति क्या है, चित्त मुझे कुछ
डिस्प्ले करता है नॉलेज का, या तो लाइव लाता है बाहर की दुनिया से, या जो अंदर का ही अहंकार का है उसको कुछ लाता है वहाँ के संस्कार में जो है ना। और वहाँ के संस्कार भी दो तरह के हो सकते हैं, एक है जो ध्यान में सहायक हो सकते हैं, एक है जो ध्यान में बाधक हो सकते हैं। तो जो चित्तवृत्ति आई आपने देखा ये ध्यान में बाधक है, तो आपको एक चित्तवृत्ति एक और आ गई। देखिए उसी चित्त ने एक और वृत्ति आपको दी कि आप इस चित्तवृत्ति को हटा सकते हैं एक बार बाहर सांस फेंक कर। ये ध्यान में सहायक चित्तवृत्ति है, इसकी सहायता से आपने उस चित्तवृत्ति को हटाया। तो ये साया सब कुछ हो रहा है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली नहीं होता, एक के बाद एक बहुत तेज गति से हो रहा है कि मुझे इस चित्तवृत्ति से उलझना नहीं है क्योंकि मैं ध्यान में हूँ। और ध्यान में ऐसी चित्तवृत्ति का मुकाबला करने का तरीका क्या है? एक बार सांस को बाहर फेंक। देखिए देखिए इस बार इसको भी समझ लीजिए आप हमारे परिवार में हम सब ये इतनी बातें जान गए हैं। हम सांस को बाहर फेंकने को कहते हैं विधारणा। वी लगा हुआ है, वी है विपरीत, है ना, कोई विलोम के अर्थ में है, उल्टा। विधारणा से क्या हुआ? मुझे एक चित्तवृत्ति मिली जिसको मैंने धारण कर लिया। ये धारणा शब्द वहीं से आया है। धारणा मैंने क्या किया? एक ऐसी चित्तवृत्ति को धारण किया है जो मुझे विधारणा से प्राप्त हुई है। विधारणा है सांस को बाहर फेंकना, है ना, जो सही कहता रहता। अब मैंने कॉन्शियसली क्या किया? श्वास बाहर फेंकी। इस बाहर फेंकने की क्रिया का नाम है विधारणा। अब सांस बाहर फेंकने का जो आउटकम है वो है चित्त की शांत वृत्ति। वो जो शांत वृत्ति है उसको मैंने धारण कर लिया। अब मैं ये धारणा हो गई। देखिए विधारणा करके मैंने धारणा को प्राप्त कर लिया, है ना। ऋषियों के शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो देखिए अब योग दर्शन की इन्होंने बात की, इसी पहले अध्याय में आगे जाएंगे ना आप, ईश्वर परिणाम के बाद कच्छधन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। ये सूत्र है जिस सूत्र के आधार पर मैं मनमानी बात नहीं बोलता। मैंने जो आज आपको बोला है विधारणा से था, इसका सूत्र क्या है? योग दर्शन के पहले अध्याय का मेरे ख्याल से 30 के आसपास होगा, है ना। मैत्री करुणा मुदिता के बाद अगला है, नेक्स्ट वाला वो शायद 33 है तो ये 34 हो, है ना। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये योग दर्शन का सूत्र। सांख्य का सूत्र और भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। सांख्य का सूत्र 30 अध्याय का है, अभी मैं संख्या नहीं बता सकता। छर्दी विधारणाभ्याम, छर्दी विधारणाभ्याम। यहाँ विधारणा शब्द है, वहाँ प्रच्छदन विधारणाभ्याम। वहाँ यहाँ छर्दी है, वहाँ प्रच्छदन है, बात एक ही है। अब छर्दी का भी मैं अर्थ बता दूं, ये है जैसे छीलते हुए, बढ़ई लकड़ी छीलता है ना, ऐसे ऐसे। तो जब हम सांस को बाहर फेंके हैं तो ऐसे कीजिए जैसे आप छीलते हुए भी सही वायु निकाल रहे हैं, है ना। जैसे बढ़ई छील के लकड़ी को सपाट करने के लिए फाइन ट्यूनिंग करता है ना सैंड पेपर से, जैसे ऐसे, या अपने इंस्ट्रूमेंट से। तो छर्दी है क्या मैं बोलूं, मैं कह नहीं पाया। सैंड पेपर से घिसने के जो किया है उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, पता नहीं अभी। स्क्रबिंग क्या कहा? स्क्रब करते हैं ना, नहीं, शेविंग, तराशना भी होता है। शेविंग, तराशना या शेविंग। सैंड पेपर से देखिए एक लकड़ी बढ़ई बना देता बाद में उसकी फिनिशिंग के लिए, वो उसको सैंड पेपर स्क्रबिंग से ही बोलते घिसता हैं, है। उसको शिवलिंग स्क्रबिंग बोलते हैं, स्क्रबिंग या शेविंग। नहीं शिवलिंग चलिए जो भी शब्द है हाँ, उसको छर्दन बोलते हैं। तो छर्दन करते हुए विधारणा किया मैंने, और विधारणा से जो चित्तवृत्ति मुझे प्राप्त हुई, आप चाहें तो ये वाक्य लिख लीजिए, विधारणा से प्राप्त चित्तवृत्ति को धारण करना धारणा कहलाती है ना। तो सांख्य और योग दोनों दर्शन में ये सूत्र है। उससे हम
अब हम लोग क्या है, हम लोग योग का थोड़ा अभ्यास कर चुके हैं। अब हम है ना बह्यंग योग में कहीं नहीं जा रहे, सीधे हम धारणा में जा रहे हैं। और धारणा में जाने के लिए हमने इस सूत्र का उपयोग किया और हम धारणा में चले गए। और धारणा क्या, ये चित्त वृत्ति को पुष्ट ढंग से धारण कर ले, एक तांता हो जाए तो हमारा ध्यान हो जाए। धारणा की पुष्टता में ही ध्यान है। तो आज हमने 10 मिनट किया, बीच बीच में आपको एक टाइम विंडो मिली जब आप ब्लैंक माइंड, है ना, आपको मिली, सबको मिली हो। किसी को 5 सेकंड की मिली है, किसी को 50 सेकंड की मिली, किसी को 2 मिनट की मिली। वही टाइम विंडो एक्सटेंड होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, तो आप ध्यान में होंगे। अब मैं बताया था ना, ध्यान के 2 स्टेजेज हो गए, लाइव चित्तवृत्ति को हटाना, फिर प्लेबैक वाली चित्तवृत्ति। अब समझ लीजिए आप, ध्यान से 2 लाभ होते हैं, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ जब वेद जी बोल रही थी। पहला लाभ होगा, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, जो अशुद्धि है हो जाएगी। और दूसरा लाभ होगा, अहंकार में जो अनवांटेड क्लेश वाले संस्कार है उसका हनन होगा। तो सांख्य का सूत्र है, रागो उपहति ध्यानो राग हनन। ध्यान, मुझे सूत्र को याद नहीं आया क्या है, एक मिनट, जो मेरे सामने ही पड़ा है, मैं सही सूत्र बता दूं आपको। तीसरे अध्याय में है, हाँ, तीसरे अध्याय का 30वां सूत्र है, रागो अपहति, यानी राग और उपहति, हति यानी हनन। रागो उपहति ध्यानम, ध्यान से राग का हनन होता है, उपहति। ठीक है ना, ये सूत्रों में लिखा है ऋषियों ने, तो हम अपनी मनमानी बात नहीं बोल रहे, है ना। तो ध्यान से पहले तो अशुद्धि जाती है, वो तो अष्टांग योग में शुरू में योग दर्शन में ही दूसरे अध्याय में लिख दिया, जहाँ अष्टांग योग अशुद्धि क्षय लिखा है ना, वहाँ दूसरे अध्याय में। और योग दर्शन में देखें तो दूसरे अध्याय का जहाँ आरंभ होता है, क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेश तनु कहता है क्रिया योग, तो क्रिया योग से क्लेश तनु होता है। सांख्य में लिख दिया, क्लेश का राग नामक क्लेश का हनन होता है। दोनों बातें एक ही है ना। अच्छा, अब मैं कुछ लिख रहा था, सोच रहा था थोड़ा एक शब्दों का दिखाऊंगा, पर अब मैं मौके की बोल रहा हूँ। डॉक्टर मदन मोहन जी का बहुत अच्छा है ये, उनका एक, हाँ, ये है 31 अगस्त का है, आप भी अपने में देख सकते हैं। मैं उनके 3 पंक्तियां मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ। योग में हम धारणा, ध्यान, समाधि की बात कहते हैं। वेद में स्तुति, प्रार्थना, उपासना की, है ना, ये फिर वो कह रहे हैं, उपासना, ध्यान एवं समाधि के बारे में ब्रीफ टू द पॉइंट क्लैरिफिकेशन चाहिए, है ना। ये शब्द हमें सब समझ में आने चाहिए, है ना। एक तरफ है स्तुति, प्रार्थना, उपासना, और एक तरफ हम बोल रहे हैं उपासना कहाँ से, किसी को सांख्य योग में। सांख्य योग में बात है धारणा, ध्यान, समाधि की। तो ये कौन सा शब्द कहाँ पर कैसे फिट होता है ना। उपासना के अंतर्गत ये है या इसके अंतर्गत उपासना क्या है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, कहानी शुरू होगी अभी, एक एक स्टेप में हम जाएंगे। एक है, हम मनुष्य चैतन्य प्राणी है ना। तो हमारी जो चेतना है, तो चित्त शक्ति भी कहलाती है, और इसलिए हम चिद रूप है। ईश्वर क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हम मनुष्य आत्मा और जितने भी जीव हैं, हम क्या है, चिद रूप। हम सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, चिद रूप है, चिद रूप। इसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति क्या होती है, ये इनहेरेंट चीज है जो हमारे साथ सदा रहती है, और यही शक्ति है, इसीलिए हम आत्मा है। यानी आत्मा है, आत्मा का गुण चैतन्य है, ये नहीं कहा जाता है। स्वरूप शक्ति बहुत ही इंडिकेट होती है
जैसे ईश्वर का गुण सच्चिदानंद नहीं है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। आप समझ रहे हैं ना, ये स्वरूप शक्ति इंटीग्रल चीज है, ये उसका ओढ़ा हुआ एडजेक्टिव नहीं है ना, ये वो है, समझ गए, ये बड़ी गहराई की बात है। यह स्वरूप शक्ति है कि जब भी मैं हूं मेरी वो चेतना है और मुझे उसका पता चलता है। तो अभी भी आप सबको मालूम है आपकी चेतना है, यदि आपकी चेतना नहीं है तो आपका मैं ही नहीं है ना? फिर कौन यहाँ बैठा हुआ है ना? तो स्वरूप शक्ति सबसे अधिक इंटीरियर चीज होती है। अब एक चीज होती है स्वभाव। देखिए हम लेयर बना रहे, स्वरूप शक्ति है चैतन्य, चेतना, इसका मुझे भी भान है, आपको भी भान है हमेशा। मैं रात की नींद में भी सो गया एकदम, तो कोई बाहर से खड़ा होकर देखा, हाँ इसकी चेतना है, वहां चेतना, वहां जहां मैं हूं वहां चेतना भी है, पक्की बात। अब एक चीज है स्वभाव, वो आत्मा का स्वभाव कहलाता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। अब ऋषि का कहना है ये स्वभाव शब्द ही है, स्व का भाव, यानी ये भाव हमेशा बना रहता है। और ये स्वरूप शक्ति से थोड़ा कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि इस समय भी मेरे जो आत्म तत्व है वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और नित्य है, लेकिन मुझे शायद उसके बारे में कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगा कि मैं मुक्त हूँ, मुझे लगा कि मैं बद्ध हूँ। मुझे क्या लगा, एक सामान्य मनुष्य को क्या लगता है कि हम सब बॉन्डेज में हैं, हम बद्ध बन के आए। पर इसी का कहना है कि तुम्हारा आत्मा स्वभाव से मुक्त है। अब बस है तुम अविवेक के कारण ये बात नहीं जानते, तुम इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे क्योंकि तुम्हें अविवेक। पर अभी अब इस चक्कर में आप ज्यादा मत पड़िए, आप बस ये लाइन समझिए, ये स्वरूप शक्ति को आपका भी भान है, मैं चैतन्य। स्वभाव वाली जो बातें हैं वो आपके गुण हैं, आपको भान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसी कहे हैं नहीं है वो क्या गुण बताए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ये हो गए हमारे 4 गुण जो असल में हमारे साथ सदा हैं, लेकिन हमें इसका भान नहीं होता क्योंकि हमें कुछ मिसकंसेप्शन है। अब आई 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ चैतन्य है उसकी 3 निज शक्तियां, इसको अब एक नया टर्म उनका है निज शक्ति। एक थी स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति तो सदा है और मुझे भी मालूम। निज शक्ति है जो सदा नहीं होती, कभी उसका उद्भव होता है, कभी कभी उस जन्म लेती है और कभी कभी बंद नहीं होती हो, इसको कहते हैं निज शक्ति। निज शक्ति बताया 3 है, इसके सही टर्म है ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व। ये लिखना शायद आपको कठिन हो, पर ज्ञातृत्व को बोलेंगे एबिलिटी टू नो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ जाए तो एबिलिटी टू नो। जैसे देखिए कैमरा भी देख है आप, कैमरा में कोई चेतन शक्ति नहीं है जो उसको नॉलेज होता हो, आप समझ रहे हैं ना। कैमरा में भी डिजिटल मेमोरी होगी तो आप कह सकते हैं इसको भी याद है, तो वहां कोई नोअर नहीं है जानने वाला चेतन प्राणी। जैसे मैंने अपने भाई बहन मित्र को देखा तो मुझे खुशी हुई, कैमरा में ये वो चीज नहीं है ना, क्योंकि कैमरा में वो चेतना नहीं है। तो चेतना से उद्भव हो रहा है 3 शक्तियों का, ज्ञान, कर्म और भोग। एबिलिटी टू नो, एबिलिटी टू experience the event and ability to act upon the surrounding। इसको कहेंगे ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व। ये 3 उसकी निज शक्तियां हैं। ये निज शक्तियां तब काम शुरू करती हैं जब इस आत्मा के साथ तन और मन, बॉडी और माइंड मिल जाते। तो निज शक्ति का जन्म होता है, शक्ति है उसमें और स्वरूप शक्ति के कारण ये निज शक्ति है। पर निज शक्ति अब जैसे मेरा निधन हो गया, अब मेरा आत्मा कहीं हवा में है, तब उसको ज्ञान कर्म भोग नहीं हो सकता। तो ज्ञान कर्म भोग
एक परिस्थिति में होता है, एक परिस्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए इसको स्वरूप शक्ति नहीं बोलते, निज शक्ति बोलते। शक्ति बोल ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ लो। चैतन्य स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो हमें असल में हम जानना चाहते हैं अपने आप को, इसीलिए मोक्ष मार्ग लेते हैं इत्यादि। ये जानने के साधन के रूप में स्वरूप शक्ति से 3 निज शक्तियां जन्म लेती हैं। वो है ज्ञान, कर्म, भोग की शक्ति, और वो आयुर्वेद जी ने हमें बहुत अच्छा समझा दिया। अब ये भोग से क्या हो रहा है, भोग सुख का भी है, दुख का भी है ना। तो कोई मनुष्य दुख चाहता नहीं, कोई मनुष्य दुख चाहता नहीं। तो वैदिक ऋषियों ने एक विचित्र कल्पना की, एक विचित्र कल्पना की, और इसकी बेसिस है सुषुप्ति। सुषुप्ति में उसे दुख नहीं होता, तो उसने ये ज्ञान कर्म भोग के एक कोरिलेशन बना लिया कि कर्म तो मनोमय कोश से है, यानी आउटर माइंड से। आज वेद जी ने भी वो डायग्राम में एरो दिखा दिया। नॉलेज कहाँ है, तो है ना बुद्धि के लेवल पर था। कर्म कहाँ है, अहंकार द्वारा भी हो जाता है। एक्सपीरियंस तो एकदम पुरुष के लेवल पर हो या भोग, है ना। तो कर्म उसने देखा कि ये अहंकार और मनस भी कर्म कर डालते हैं, आउटर माइंड। ज्ञान कहाँ है, बुद्धि के लेवल पर। यही हम बोल रहे थे, चित्तवृत्ति बुद्धिवृत्ति का पुरुष को बोध होता है। तो ज्ञान का टर्मिनल पॉइंट है बुद्धि, कर्म का पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है अहंकार, आउटर माइंड है, और फिर मनस है, फिर कर्मेंद्रिय। अब भोग तो ज्ञान वाला ही भोग बन जाएगा जब चिद अवसानो भोग है। अभी उस डिटेल में नहीं जाया। अब हम उपासना शब्द आया कहाँ से? उपासना उन्होंने देखा कि सुषुप्ति में जब कोई भी चित्त वृत्ति नहीं है, तो मैं दुख से तो दूर, सुख है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर दुख नहीं छूता मुझे कोई, बहुत अच्छी चीज है वो। तो अभी कल की क्लास में भी हमने बोला, ड्रग एडिक्ट्स वही रास्ता अपनाते हैं। नींद तो रात में नहीं आएगी, चलो कोई दवा ले लो और हाई हो जाओ, हाई होना जानते हैं। कोई सूंघ कर ले आया, कोई इंजेक्शन ले आया, क्या कर रहा है, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध सबको चाहिए, है ना। सुषुप्ति से नहीं मिल रही है तो दवा लेकर ले। पर हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि सुषुप्ति जैसी अवस्था को हम दिन के समय अलर्ट होकर प्राप्त करेंगे। देखिए, अब ज्ञान कर्म भोग को उन्होंने क्या बना दिया, ज्ञान कर्म उपासना। आप समझे, ज्ञान कर्म भोग हमारी 3 शक्तियां हैं। अब उन्होंने क्या, ज्ञान और कर्म ऐसा करना हमें सीखना है कि हमें भोग की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें उपासना की प्राप्ति चाहिए। उपासना की डेफिनेशन आ गई सुषुप्ति से। देखिए, अभी कोई शास्त्र भी आपने नहीं पढ़े हैं, तो ये कॉमन सेंस है। सुषुप्ति सबने देखी हुई है, सब कहेंगे हाँ हम सुषुप्ति को कैसे प्राप्त कर सकते। तो देखिए, उपासना इज ए डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज। जैसे ज्ञान में एक पूरा डिसिप्लिन है, कर्म में पूरा डिसिप्लिन है, तरह तरह की स्किल पैदा करने की। उपासना ज्ञान और कर्म के समान एक व्यापक डिसिप्लिन है, which can help you go to your innermost envelope, है ना। समझ गए ना। ज्ञान इज, आप बच्चों से बोल रहे हैं खूब ज्ञान प्राप्त करो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ। कर्म के लिए भी आप बच्चों से कहते हैं आर्ट सीखो, म्यूजिक सीखो, खेल कूद, टेनिस में बल्ला कैसे पकड़ना है ये सीखो, साइकिल चलाना सीखो, कार चलाना सीखो। ये सब स्किल बेस्ड डिसिप्लिन है। एक एक स्किल पर हजारों किताबें लिखी। उपासना इज ए व्यापक डिसिप्लिन ऑफ दिस नेचर। ज्ञान की डिसिप्लिन ज्ञान सिखाती है, उसमें हजारों तरह की विद्याएं हैं आजकल। कर्म की भी ऐसे। उपासना की डिसिप्लिन क्या सिखाएगी हमें? उपासना के डिसिप्लिन का व्यापक विषय है कि सुषुप्ति जैसी ऐसी स्टेट को कैसे प्राप्त किया जाए। अब जैसे हर डिसिप्लिन में थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी या नहीं। तो उपासना में सैद्धांतिक पक्ष भी, जैसे हम सांख्य पढ़ रहे थे, तो सांख्य में ये फिलॉसफी भी है कि उपासना क्या है, कैसे है, उससे क्या लाभ होंगे, ये सब उपासना डिसिप्लिन में आ जाएंगे।
और फिर उपासना की जो मेंटल स्टेट है, जो शुड बी रेप्लिका ऑफ सुषुप्ति, उसको प्राप्त कैसे करना, उसकी प्राप्ति में क्या क्या बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं का कैसे निवारण करना है, ये सारी चीज कहलाएगी उपासना। आप समझिए। अब है यही ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3 डिसिप्लिन हो गई। तो ये कहने को जैसे इसको बना दिया प्रस्थान त्रयी, वी शुड ऑल बी एंगेज्ड इन ज्ञान, कर्म एंड उपासना। अब ये 3 चीजें ईश्वर से लग गई, ईश्वर के प्रसंग में हो, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर से कर्म के लिए सहायता मांगना, ईश्वर की उपासना करना, तब ये हो जाता है स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ईश्वर के गुणों को जानकर उसके गुणगान करना स्तुति हो। अच्छे भले कर्म में अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर उसकी सहायता मांगना प्रार्थना हो। और उपासना का टर्म ही है, अब हम माइंड को डिस्कनेक्ट, सुषुप्ति जैसी चीज में तो जाना ही चाहते हैं, और सुषुप्ति में हमने क्या देख लिया कि माइंड इज वॉइड ऑफ एनी एक्टिविटी, है ना। अब ये मैं किसी बच्चे को सिखाऊं कि तुम्हें अपने माइंड को इनएक्टिव करना है, तो ये एक होती है निगेटिव वाली शिक्षा, ये नहीं करना, ये नहीं करना, माइंड में ये हो रहा है, इसको हटाओ, इसको। अब इसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन देना है तो हम क्या बोलते हैं कि ईश्वर से खूब प्यार। देखिए, ईश्वर से प्रेम करने में उपासना हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि आपके अंदर ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम है, एक हाईएस्ट लेवल का, तो आपका चित्त कोई व्यक्ति भेजेगा नहीं। आप समझे ना, चित्त वही व्यक्ति भेजता है जिससे आपको प्रेम है, और ईश्वर की चित्त वृत्ति होती नहीं है। तो ईश्वर को, यदि चित्त को आपको पता चल गया है, आपके चित्त को, कि मेरे स्वामी को ईश्वर के से प्रेम हो, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर के पास जाना चाहता है वो फिर कोई डिस्टर्बिंग चित्तवृत्ति नहीं भेजेगा। आप समझ है ना, चित्तवृत्ति निरोध इज इक्वल टू ईश्वर प्राप्ति। यदि आपके अंदर ईश्वर से, तभी ईश्वर परिणाम सबसे ऊपर आ गया योग दर्शन, सबसे हाईएस्ट लेवल लोगी को उसने यही बोला, ईश्वर परिधान का पालन करो। उसी में सब चीज आ गई उसकी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया पतंजलि ने। पतंजलि ने बस बताया ये ईश्वर है, तुम्हें उससे प्रेम है तो तुम्हारे मुंह से प्रणव ध्वनि निकलेगी और मन में अंदर से, फिर तो कोई और चित्तवृत्ति आएगी ही नहीं, तुम सीधे उसके पास पहुंच जाओ। आप समझे ना। तो ईश्वर उपासना, जब ये ज्ञान कर्म उपासना ईश्वर से संबंधित है, तब ये हो गया स्तुति, प्रार्थना, उपासना। सीधी सी बात होगी। अब आया उपासना में, उपासना की जो मैकेनिक्स है, मैकेनिज्म है, जो हम अभ्यास करते हैं, तो योग दर्शन में अब आया कि पहले उसकी तैयारी करो। अब वो है बहिरंग योग की, जो अष्टांग योग की। और अब लंबी में हम बातें नहीं करेंगे, हम ये सब अपने पाठ्यक्रम में कर चुके हैं। 3 श्रेणी के लोग हैं। अब जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं उसको तो पतंजलि ने कह दिया ईश्वर परिधान है, तुम्हारे हो गई उपासना, सब हो गया तुम्हारा। ईश्वर परिधान अकेला ही तुम्हें वहां पहुंचा देगा। फिर जो मध्य से मध्यम वाले थे, तो उन्होंने कहा तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान किया योग में। अब 3 बातें बोल दी, तप, स्वाध्याय, ईश्वर। तप का संबंध है कर्म से, स्वाध्याय का संबंध है ज्ञान से, ईश्वर परिधान का संबंध है उपासना से। तो सभी जगह ये कर्म, ज्ञान, उपासना की श्रेणी। और कर्म ज्ञान का क्यों कोरिलेशन है? कर्म आउटर माइंड का है, ज्ञान इनर माइंड का, उपासना में माइंड है ही नहीं। तो हमेशा दिशा यही रहेगी, कर्म, ज्ञान, उपासना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। आप समझे ना। अब आई बात कि जो अष्टांग योग है, जो बाहर, जो निम्न श्रेणी वाले लोगों के लिए, तो उनको है कि थोड़ा और डिसिप्लिन लाना है। तो एक उन्होंने 5 चीजें बता दी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और ये बता दिया ये बहिरंग योग है, यानी ये
पेरिफेरल योग है, योग में बैठने के लिए, जैसे बोलते हैं ना नहा कर स्कूल जाओ, नहाना तो स्कूल जाना नहीं हुआ ना। अब हम बच्चों को सिखाते थे नहा कर स्कूल जाओ, है ना। नहाना से तुम्हारी शरीर में, मन में थोड़ा वैसा भाव आएगा कि शिक्षा के लिए, विद्या प्राप्ति में, स्कूल में तुम्हें अच्छा लगे। बिना नहाए जाओगे, थोड़ा विद्या प्राप्ति उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाती, है ना। अब नहाने को कोई बोले कि ये भी विद्या प्राप्ति का अंग है क्या? ये विद्या प्राप्ति का अंग नहीं है, ये बहिरंग है, यानी ये पेरिफेरल चीज है, दैट हेल्प्स यू डू द रियल थिंग। आप समझे? तो बहिरंग योग है जो पेरिफेरल चीजें हैं उसका। अब जो उपासना का जो प्रैक्टिस का रूप है, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में जिस माइंड को हमें कंट्रोल करना है, सांख्य में उसकी लंबी चौड़ी चर्चा है, बहुत कुछ है। और जो प्रैक्टिस पार्ट है सांख्य में वो भी है, लेकिन योग में उसको इलेबोरेट किया गया। अब जो एक हो गया सैद्धांतिक पक्ष उपासना का, एक हो गया उसका क्रियात्मक पक्ष, कैसे करनी है उपासना। अब उपासना के क्रियात्मक पक्ष में आते हैं ये शब्द अष्टांग योग। अष्टांग योग के 5 अंग बहिरंग योग है। अब जहां से ये प्रश्न शुरू हुआ है, धारणा ध्यान समाधि, ये है उपासना के क्रियात्मक पक्ष के अंदर के अंग। तो धारणा ध्यान समाधि से आप सब परिचित हैं। धारणा तो आज की हमने, एक चित्तवृत्ति को धारण कर लेना, उसको सस्टेन कर लिया है तो आपका ध्यान हो गया। ये जब सस्टेन कर लेते हैं तो इसको कहते हैं चित्त की एकाग्र अवस्था, वन पॉइंटेड स्टेट। इसके बाद एक चीज हमें मिलती है, वो है चित्त की निरुद्ध अवस्था, जब ब्लैंक माइंड मिलता है ना। तो हम भी जानते हैं, जब हम नींद में जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, तो हम अपने आप को नहीं कहते हैं कि, हम नहीं कहते हैं कि आज मुझे सुषुप्ति मिलनी ही है। हम इच्छा तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि आज रात 10 बजे मैं सोने गया हूँ, कल सुबह उठूंगा तो मुझे सुषुप्ति मिली होगी। कोई गारंटी नहीं दे सकता। स्वप्न वाली नींद भी हो सकती है, बहुतों को तो वो भी नींद नहीं मिलती, नहीं बिस्तर पर लेटे हैं, नींद ही नहीं आ रही। तो सभी तरह की संभावना है, पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं अधिक से अधिक हम यत्न क्या कर सकते हैं, नींद में जाने का यत्न कर सकते हैं। नींद में चले गए, स्वप्न वाली नींद है तो उसी से ऊपर आ गए। कहने का मतलब है स्वप्न वाली नींद सुषुप्ति बनती है, इसका निर्णय मैं नहीं लेता, इसका निर्णय कोई और लेता है। कोई और, मेरी इच्छा से ये नहीं होता। मैं तो रोज इच्छा करता हूँ सुषुप्ति मिले, पर मुझे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सुषुप्ति में ले जाने का निर्णय कोई और लेता है, मेरे हाथ में नहीं है। वैसे ही ध्यान से समाधि का जो निर्णय है, जो एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था, ये निर्णय मैं नहीं लेता, ये कोई और लेता है। कोई और मुझे अपनी गोद में उठाएगा, तब मेरी समाधि होगी, तब मेरी सुषुप्ति होगी। आप समझ गई बात? जैसे स्वप्न वाली नींद से अगली स्टेज है सुषुप्ति, इसका डिसीजन इसकी मेरी इच्छा पर नहीं है। वैसे ही चित्त की एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था बनेगी, यह मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी और की कृपा से होता है ना। आप समझ गए ना? तो ये स्टेप आते हैं। लेट मी रीड इट, आई होप आई हैव कंप्लीटेड। धारणा ध्यान वेद में उपासना ध्यान एवं समाधि के बारे। तो देखिए अभी सभी का हमने कर लिया है। उपासना इज ए ब्रॉड डिसिप्लिन, उसमें सारी फिलॉसफी आ जाएगी। तो महर्षि दयानंद ने एक वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि वेद में ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान सब है। तो उन्होंने लिखा है कि वेद का जो उपासना से जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वेद का उपासना कांड, वह सांख्य में है, योग में। ये महर्षि दयानंद के शब्द है। यानी उपासना की जो वेद की फिलॉसफी है, that has been covered in Sankhya and Yoga
और थोड़ा कुछ वेदांत में, ऐसा उन्होंने लिखा। तो सांख्य और योग में उपासना की बातों का, द फैकल्टी ऑफ उपासना हैज, डिसिप्लिन ऑफ उपासना हैज बीन कवर्ड। फिर मैंने क्या कहा, इसमें सैद्धांतिक पक्ष भी है, क्रियात्मक पक्ष, थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस, एंड साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल। ये तीनों बातें पूरी हैं इसमें। सांख्य में साइंस ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस अधिक है, साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल कम है। योग में योग दर्शन पूरा ही साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल वाला है, इसमें माइंड की डिटेल ज्यादा नहीं दी गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारे योग भाष्य डिफेक्टिव हैं, क्योंकि किसी को चित्त का ही मतलब नहीं मालूम, और अहंकार से चित्तवृत्तियां आती हैं ये भी नहीं मालूम, और निरोध करने के 3 प्रेस्क्रिप्शन दिए हैं ये भी नहीं मालूम। ये 3 बड़े बड़े बिंदु जो पाठ्यक्रम में मैं बोलता था ना, 4 स्तंभ है हमारे पाठ्यक्रम, तो 3 स्तंभ तो ये थे। चित्त क्या है, अहंकार के संस्कारों से चित्त पर वृत्तियां आती हैं। तीसरा था, पतंजलि ने 3 तरह के लोगों, 3 श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए 3 प्रेस्क्रिप्शन। चौथा स्तंभ होता था मेरा, धारणा में महर्षि दयानंद ने ओंकार जप की चित्तवृत्ति को अपनाने को क्यों कहा है। ये चारों बातें मैंने अपने, वो सब यूट्यूब पर है, आपको मालूम है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वो सब कवर की गई है। तो उपासना की थ्योरी और प्रैक्टिस जो भी ज्यादा कुछ है सब महर्षि दयानंद कहे हैं, सांख्य और योग में कवर्ड है। उसी को बेस बनाकर हम, मेरा भी विषय आप जानते हैं क्या है, मैं उपासना का प्रचार कर, मैं वेद की बहुत सारी बातें हैं सारे से, मैं उस पर अभी नहीं जाया। मैंने जब अपना जीवन बदला 25-26 साल पहले, मेरा जीवन उपासना को समर्पित है ना, क्योंकि उपासना के साथ बहुत अन्याय हुआ है ना। बाकी बहुत सी बातें उपासना से मुझे, जो दूसरी बातें मैं बोलता रहता हूँ, पर हाँ मेरा फोकस मैंने हमेशा रखा है कि जनता के बीच में उपासना का विषय पूरा खोल कर लाना है सांख्य और योग के माध्यम पर, और उसका वही अच्छी तरह से पहचान, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी, जैसे वेद जी को ये बात बहुत पसंद आ गई, प्रभु की गोद में जाना इतना आसान हो जाए लोगों को कि, और ये सच में हमारा बर्थ राइट, और मनुष्य उपासना में सफल हो सकता है, यह मैं लगभग गारंटी दे सकता हूँ। जैसे आज हमने एक अभ्यास किया, बताइए ये अभ्यास कैसे कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं, इसको कोई भी कर सकता है ईमानदारी से। दिन में 2 बार ही बैठे, 5 10 मिनट ही बैठे, बाद में वो आगे बढ़ता जाए। तो उपासना ध्यान एवं, अब है समाधि एक शब्द है नया, और योग भी है शब्द, तो यहाँ पर व्यास भाष्य में बड़ा अच्छा आ गया, योग समाधि। योग और समाधि को उन्होंने सिनोनिम बता दिया, और योग में वो शब्द आ गया, योग यानी मिलन, तो मेरा प्रभु से मिलन योग है, और उस अवस्था को समाधि कहेंगे। और मैंने कह ही दिया, अधिक सम एफर्ट वी कैन पुट ऑन टू गो टू ध्यान, ध्यान के बाद समाधि में माँ से लग सकता हूँ। माँ, बच्चा क्या लिपट जाता है माँ से, अब माँ उसको गोद में लेगी या नहीं, ये तो भाई माँ डिसाइड करेगी ना, दैट इज एट द प्लेजर ऑफ द मदर, इज इट नॉट? तो अब आपको ध्यान से समाधि क्या है, और हम सबको लगी हुई है, हम सब उसकी गोद में जाते हैं, ऐसी बात नहीं हो, बहुत दयालु है बेचारा। तो श्रुति में भी हमें गोद में लेता है, हमें पता नहीं चलता, समाधि में जब लेता है तो हमें पता चल जाता है। पर थोड़ी थोड़ी एक एक क्षण वाली समाधि हर मनुष्य को मिली है, हर मनुष्य को, और हर क्षण में कोई जो इंसाइट मिलती है वो भी समाधि है। अब समाधि के भी 2 अंग हो गए, एक तो वह पूरा गोद में ना लेके एक आपको इंसाइट दे देता है, जैसे बच्चे को माँ ने एक मिठाई दे दी, बच्चा खुश हो, ये है लो लेवल की समाधि, उसने मुझे कुछ दिया। एक है वो, इसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, एक है वो पूरा गोद में ले लेता है, कुछ नहीं देता, तो दोनों एक दूसरे को बस देख है ना। जैसे बच्चा माँ की आंखों में खो गया, माँ बच्चे को खो, तो वो है अंतिम असंप्रज्ञात समाधि।
एक है उसने गोद में लिया, थोड़ा कुछ दे दिया उसको शांत करने को, बच्चा उससे ही खुश हो गया। तो पहले हमें संप्रज्ञात समाधि मिलती है फिर और दैनिक जीवन में ये मिल चुकी है। अब ये भी देखिए हमने कवर किया ये सब पाठ्यक्रम में, ध्यान से सुनिए। हमें जब उसकी गोद में जाना है तो ये सारे स्टेप्स हैं, और उसे जब मुझे गोद में लेना है तो ये क्षणिक है। तो हमें समाधि मिलती है जब वो हमें लेता है ना, क्रिटिकल मोमेंट्स पर वो लेता है, ठीक है ना। तो जब आपको इंसाइट आई, जब कोई बात आपको समझ में आई, उसने आपके चित्त पर वो फ्लैश डाला था, तभी आपको समझ में आया, है ना। एक बात इतनी बार सुनते हैं आप, नहीं समझ में आती, पर एक दिन समझ में आ जाती। कैसे आ जाती है? ऐसे आती है क्योंकि उसने वो फ्लैश आपको दिया। तो ईश्वर कृपा से ही सब होता है ना। एक समय ऐसा भी आता है वो आपको गोद में भी। चलिए बहुत अच्छा है, आज भी हमने थोड़ा समय पार किया, तो अच्छा है। फिर मिलेंगे, आप लोग थोड़ा प्रोएक्टिव बनिए। आज तो वेद जी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं सोच रहा था क्या होगा इस महीने की मीटिंग का। फिर 2 प्रश्न भी आए, उन सबका भी धन्यवाद। तो आप लोग कुछ थोड़ा आगे बढ़िए, है ना। अभ्यास में भी मैं एक नई बात, मैं सुनने को लालायित हूँ, मैं बोलूंगा, और यदि कुछ नहीं आता तो मैं वही कहने वाला हूँ। आप सबको ध्यान के अभ्यास से क्या लाभ हुआ है, हो ये आप शेयर कीजिए, है ना। बहुत पर्सनल बातें नहीं है, सबके काम आएंगी, लोगों को पता चलेगा क्या क्या स्टेजेज आती हैं, उसका कितने दिन या महीने सप्ताह के बाद मैं उससे थोड़ा बाहर निकला, फिर एक नए प्लेट्यू पर आया। देखिए ये भी एक पर्वतारोहण है, रुक जाएंगे आप एक जगह, कई महीने रुक जाएंगे, आपने हार मान ली तो वहीं के वहीं है, फिर एक दिन अचानक वो आपको ऊपर ले जाएगा, है ना। तो ये स्टेजेज आएंगी, आप सब अपने अपने अभ्यास में भी रखिए, सैद्धांतिक पक्ष पर भी बात कीजिए, सभी चीज, तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। आचार्य जी शब्द नहीं है, आपको धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। आचार्य जी कोई शब्द नहीं है, आप होप इट गोज डीप समटाइम इन